Okay. So first hour, we will do our padhai likhai, and then second hour, we will comment on the assignments, which is a descriptive. So we should have a balance between the both MCQ, technical question answers, and subjective. This also explains the subjectivity, but in a very, very objective manner. Point forms. Okay. So 3 boys and 3 girls I have considered in that, because we cannot, though 14 people have sent the assignment, 11 people are still sleeping. Let them sleep. It's good that they are sleeping. If they will also wake up, the competition will become more tough. So sleeping boys should let them sleep. Only those people who are working hard. This is the way when you work, you figure it out, you cut and paste and try to figure it out, try to read it. So it will help you to understand the concept. Me talking has no meaning until unless you also move your hand and little bit of brain. Only then thing happens. Again, we will quickly move with the our this sensor business. It's a tricky business, little bit, but if you will pay attention, it is not that rocket science you will not understand. So I'll be quickly recapping what we discussed yesterday. The size of the sensor would affect the depth of field. Size of the sensor, considering the fact the focal length and aperture and distance between the subject and the camera would remain same. Rest of the parameter remain same. How the sensor would affect the depth of field. This fourth factor is being introduced since the digital technology has come. Earlier there used to be 3 factors. So if today somebody will ask you how many factor would affect the depth of field, the answer would be 4, not 3. Okay. But if we make a tricky answer, tricky question, how? In the time when there was a picture negative was used, how many factor would affect the depth of field? Answer would be 3. Right? Answer would be 3. Aperture, focal length, and distance between the subject and the camera. But in today's scenario, so you have to read the question carefully. Remember, there are people like me who likes to frame a tricky question. Because in tricky question, you are trapped. People who are intelligent, they will be able to answer. So confusing you people is one of the agenda of a teacher. Again and again, I am saying that even if your concept is clear, little bit trick here and there, and you're gone. So when these 3 parameters remain same, a sensor size which is larger, suppose this is a, okay, I have added little more thing over here. Let me add, if I can extend this damn thing. Okay. So this is my field of view. Field of view means this is my frame. This is my frame. The yellow thing is my frame. And if I use my, let me just reduce this thing so that you can easily understand a little bit. Okay. Now, if this is my frame, yellow line, and if I have to capture it, what I'm going to do is, I am going to use any kind of camera which will have some kind of a sensor. So if it is a full frame sensor, for example, it will cover this much area, right? But if the sensor size is small, what is going to happen? The angle of view of the sensor size would be small. So it will cover the small area. Is it clear? Like a telephoto lens. What the telephoto lens do is, angle of view become narrow. So it will start behaving as if it is a telephoto lens, which means it will cover less area. It is not going to become telephoto because your lens is fixed. Focal length is fixed. So how it can become a telephoto? But it will behave like a telephoto lens, and the area of the coverage will become less. So it will not cover the entire frame. Is it clear to you? Now, but I want to have the entire frame. So what I'm going to do, either I go back or I use the wide angle lens. Correct or not? If you understand this much, the concept is over. 2 things. The moment your sensor size becomes small and you still need to have the cover the same area, you have a 2 options. Either you use the wider angle lens, which you cannot because your lens is same. So either you go back or use the wide angle lens to cover the same area. That is the only way. There is no any other way. Now we will frame the questions to make you understand the concept more clearly. Sensor size and field of view. Field of view means angle of view. A larger sensor captures the wider field of view than a smaller sensor.
अब ये स्मॉलर सेंसर्स एपीएस सी सर, ये तो बड़ा झंझट है, कैसे याद करें ये सब। इसका एक फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आपको समझा दूंगा। एपीएससी और माइक्रो फोर थर्ड व्हेन यूजिंग द सेम लेंस, ये छोटे वाले होते हैं लार्जर से। अब कौन सा पता लगेगा किसका क्या सेंसर साइज है, मैंने उसका फॉर्मूला बताया, अभी आपको बताऊंगा। टू मैच द फ्रेमिंग ऑन ए स्मॉलर सेंसर यू मस्ट मूव फर्दर अवे और यूज ए शॉर्टर फोकल लेंथ विच मींस वाइड एंगल लेंस, both of which will increase the depth of field. करेक्ट और नॉट? वाइड एंगल हो गए तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गया, पीछे की तरफ चले जाओगे तो भी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गया। तो हो क्या रहा है यहां पे, आपको फोकल लेंथ एडजस्ट करना है टू गेट द सेम कंपोजिशन फ्रेमिंग ऑन ए स्मॉलर सेंसर। यू हैव टू यूज ए स्मॉल शॉर्टर फोकल लेंथ, और शॉर्टर फोकल लेंथ नेचुरली हैव ए डीपर 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 शेलो फील्ड विच मींस लार्ज depth of field which makes the background more in focus. Clear? Deeper means opposite of shallow. Distance subject. Now smaller sensor require camera to further from the subject to get the same framing as I said, और greater subject distance मतलब पीछे जाओगे तो और subject बढ़ जाएगा आपका। तो indirectly अगर हम बोला जाए तो large sensor का मतलब क्या हो गया, shallow depth of field. A large sensor like a full frame capture a wider field of view than a smaller sensor, जो हमने अभी फोटो में देखा था, at the same focal length. To get the same framing on a large sensor you often used to use a longer focal length lens or go closer to the subject. बात समझ आ गई जी? Smaller sensor means deeper depth of field. ठीक है जी? Larger sensor means shallow depth of field. So smaller sensor like APS-C, Micro Four, ये सब छोटे सेंसर होते हैं फुल फ्रेम से, gives you a narrow field of view. To get the same framing on a smaller sensor you often have to go use a shorter focal length, मतलब वाइड एंगल लेंस ले लो या पीछे चले जाओ। दोनों केस में क्या होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है आपकी बढ़ जाएगी। ये हम लोग इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। क्विकली क्वेश्चंस आंसर में घुस जाते हैं। क्वेश्चन, हाउ डज सेंसर साइज अफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट? तो अभी हमने बात किया लार्जर सेंसर होगा तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर सी हो गया। When comparing a full frame sensor to APS-C sensor, which will have a shallower depth of field at the same field of view and aperture, हमने अभी बात की है APS-C जो है छोटा सेंसर होता है फुल फ्रेम से, तो छोटा सेंसर है तो क्या होगा उसका, फुल सेंसर में डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहाँ कम होगी, जहां पे सेंसर साइज बड़ा है। तो फुल फ्रेम सेंसर का डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगा कंपेरेटिव टू APS-C. What happens to depth of field when switching from a smaller sensor to larger sensor while keeping framing and aperture the same? सब कुछ बाकी का सेम है और स्मॉलर से लार्जर पे जा रहे हो तो क्या होगा, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने अभी बात की लार्जर सेंसर मतलब लेस डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो इसको, और नीचे के उसमें मैं आपको समझाऊंगा। फॉर द सेम फील्ड ऑफ व्यू एंड एफ स्टॉप व्हाई डज ए स्मॉलर सेंसर हैव मोर डेप्थ ऑफ फील्ड? Answer is very clear, because it requires a shorter focal length to cover the same frame. फ्रेमिंग को अगर सेम कवर करना है तो मुझे क्या है, मैंने आपको बताया, या तो पीछे चले जाओ या फिर अपना वाइड एंगल ले लो। वाइड एंगल लेंस लोगे तो शॉर्टर फोकल लेंथ हो गया आपका, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी? अब ये रट लो तोते की तरह, ये जो सेंटेंस है इसको तोते की तरह रट लो। कैसे? ग्लास में पानी पहले स्मॉल होता है, कैफे कॉफी डे में जाते हैं आप, स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है, एक लार्ज होता है। करेक्ट? तो पहले स्मॉल होगा पानी ग्लास में, फिर मीडियम होगा, फिर लार्ज होगा। तो बीच में से चालू करते हैं हम लोग। मीडियम मतलब मीडियम फॉर्मेट, फुल ग्लास मतलब फुल फ्रेम, HC मतलब हाई कोट, ऐसे याद रखो इसको। HC 1 इंच स्मार्ट फोन, तो 1 इंच और HC के बीच में 4/3 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है याद करने का, मुझे रटा हुआ है, आप भी रट लो। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे मीडियम फॉर्मेट, फुल फ्रेम की जगह फुल लिख दिया मैंने वहां पे। एपीएस को भूल जाओ, एच को याद रखो। एपीएस दोनों में है, एपीएस यहां भी है, एपीएस वहां भी है। तो एपीएस में एच आ गया तो एच पहले आ गया, सी बाद में आया तो सी आ गया। याद कैसे रखना है, हाई कोर्ट के तरीके से। और 1 इंच स्मार्ट के बीच में 4/3 आ जाएगा, तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। ठीक है जी? तो 4/3 जो है सेंसर साइज जो है धीरे 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 कम होते जा रहे हैं यहां पर। और हो क्या रहा है, क्रॉप फैक्टर बढ़ रहा है। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी क्रॉप फैक्टर की हम नीचे बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इमेज यहां पे लगा रखी है।
तो मीडियम फॉर्मेट के अंदर सेंसर साइज सबसे बड़ा होगा, और सेंसर साइज बड़ा होगा तो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगा। फुल में उससे और कम होगा, एच वाले में और कम होगा, सी में और कम होगा, 4/3 में और कम होगा, 1 इंच सेंसर में और कम हो जाएगा, और स्मार्टफोन में जाके और कम हो जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेंसर साइज की। सेंसर साइज जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है जी, क्या होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए स्मार्टफोन से जब आप फोटो खींचते हैं तो एवरीथिंग कम्स इनटू द फ्रेम। एम आई राइट, रॉन्ग? ओके, अब क्वेश्चन में आ जाइए खटाखट खटाखट। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने रेड किया हुआ है। रेड मतलब खतरनाक क्वेश्चन है। समझोगे, लिखने के चक्कर में मत पड़ो, समझना चालू करो, ठीक है जी। समझ जाओगे तो लिख के आ जाओगे वहां पर, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे। विच कैमरा सेंसर वुड बी द बेस्ट फॉर अचीविंग ए ब्लरी बैकग्राउंड? ब्लरी बैकग्राउंड का मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लिख दिया है उसने, बट वहां लिखा नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये बहुत सारे सेंसर है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि ब्लरी बैकग्राउंड किसके अंदर आएगा, जिसके अंदर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी कहां पर, जहां पे सेंसर साइज बड़ा होगा। अब आपको पता है 1 इंच का सेंसर साइज, जो सेंसर साइज की बात कर रहे हैं हम, यहां से ऊपर से सेंसर साइज जो यहां पर देखिए आप, धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे सेंसर साइज छोटा होता जाएगा डेप्थ ऑफ फील्ड बड़ी होती जाएगी। वो क्या बोल रहा है, विच कैमरा सेंसर वुड बी बेस्ट टू अचीव ए ब्लरी बैकग्राउंड? उसको ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए, उसको कम डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। कम डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब मीडियम। तो जो मीडियम फॉर, बट यहां पर मीडियम है देखो, मीडियम नहीं है, तो मीडियम की बात नहीं करनी मुझे। उसके बाद क्या आता है, फुल। तो फुल फ्रेम जो सेंसर होगा, वो 1 इंच सेंसर माइक्रो फोर थर्ड स्मार्टफोन सेंसर से बड़ा सेंसर होगा। बड़ा सेंसर होगा तो चलो डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी। अगर यहाँ पे फुल फ्रेम की जगह मान लीजिए मैं लिख दिया मीडियम फॉर्मेट, तो आंसर क्या होता, मीडियम फॉर्मेट वाला। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, उसी का भाई बहन टाइप क्वेश्चन है ये। इफ ए फोटोग्राफर वांट्स मोर ऑफ ए सीन इन फोकस विच मींस ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, व्हाट काइंड ऑफ सेंसर वुड बी मोर एडवांटेजियस? वो वाला सेंसर जो छोटा होगा। छोटा सेंसर किसका होगा, वो मैंने आपको बता दिया, स्मार्टफोन होगा, 1 इंच हो गया, 3/4 हो गया, 4/3 हो गया। तो लार्जर सेंसर नहीं चाहिए, स्मॉलर सेंसर। सेंसर साइज डज नॉट मैटर, इट मैटर्स मीडियम फॉर्मेट ओनली। मीडियम फॉर्मेट तो नहीं है, मीडियम फॉर्मेट के नीचे वाले सेंसर है जिनका स्मॉल होता है। तो स्मॉलर सेंसर जो है मीडियम फॉर्मेट का ज्यादा होता है, स्मॉलर सेंसर जो है करेक्ट आंसर है। मीडियम फॉर्मेट ओनली बोल रहा है, ओनली अगर नहीं होता तो फंस जाते तुम। हाँ जी। Which factor must be changed to maintain the same framing when switching from a full frame sensor to a crop sensor? तो अगेन दोबारा से इन आंसर को देने के लिए तोते की तरह ये वाला जो फोटो है इसको याद रखो जीवन में। इसको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन दे दोगे। ये मास्टर की है सेंसर के सब क्वेश्चंस की, कि जैसे ही आपका फ्रेम उतना ही है और उतना ही फ्रेम आपको कवर करना है, ठीक है जी, तो क्या करोगे, या तो पीछे जाओगे या फिर वाइड एंगल इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको, उस एरिया को कवर करना है। और जैसे ही लार्ज फॉर्मेट से अगर छोटे सेंसर में चले गए तो आपका एरिया कवर कम होगा। आइए अब हाँ जी, फोटोग्राफर वांट मोर डेप्थ ऑफ फील्ड, तो इसका मतलब सेंसर छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। विच फैक्टर मस्ट बी चेंज टू मेंटेन द सेम फ्रेमिंग व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ए फुल फ्रेम सेंसर टू ए क्रॉप सेंसर? तो क्रॉप सेंसर छोटा होता है, छोटे सेंसर में क्या होगा, कम एरिया इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तो कम एरिया इस्तेमाल होगा, मेरे को पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूं, पीछे की तरफ चला जाऊं, ठीक है जी। तो क्या करूंगा मैं, फोकल लेंथ चेंज करूंगा अपनी। या तो मैं लेंस को चेंज कर लूं, 24 mm ले लूं या जो भी ले लूं, जिससे मेरा वही एरिया कवर हो, तो मैं फोकल लेंथ को चेंज करूंगा। अब इसी का थोड़ा डिफिकल्ट दूसरा वर्जन है, क्या, कि अगर 50 mm लेंस गिव यू ए सर्टेन कंपोजिशन फ्रेम टू मेंटेन द सेम फ्रेमिंग व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ए फुल फ्रेम सेंसर टू ए क्रॉप सेंसर, बड़े वाले से मैं छोटे में जा रहा हूं, यू विल बी नीडिंग विच फोकल लेंथ? बताइए अब जरा आप, कितना समझ आया मुझे, अब समझ आएगा तुमसे। आंसर टाइप करना चालू कर दो, जिसको समझ आ गया हो। जिसको नहीं समझ आया हो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए, अब फंस गए ना, देखो 32। चलिए, मयंक प्रखर 32।
देखो, नंबर भी लिख सकते हो या एबीसीडी भी लिख सकते हो। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, किसी ने बोल दिया 32 तो 32, किसी ने बोला 70 तो 70। खोपड़ी लगाओ, वो इंपॉर्टेंट। जी टाइप करिए सब लोग। इतना सब कुछ फ्रेशली पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें टाइम लग रहा है। अभी पढ़ रहे हो, वहां पे एग्जाम में तो भूल भाल जाओगे, अभी 20 दिन पढ़े हैं वहां पे तो। हाँ जी। बाकी लोग कुछ बोलिए। सब लोग सी बोल रहे हैं तो सी होगा शायद। जरूरी नहीं है, देखो चारू आया, जागा चारू ए। और लोग भी जागो थोड़ा थोड़ा, सब लोग टाइप करो। टाइप तो सब लोगों को करना पड़ेगा जो बैठे हुए हैं। 18 लोग हैं, अगर 18 में से किसी का नहीं दिया, मैं उसको यहां से डिलीट कर दूंगा। और मैं सोच रहा था आज वेटिंग लिस्ट लगा दिया जाए, क्योंकि सब लोगों ने आंसर शीट नहीं भेजी है। हाँ जी, और लोग और किसी का रहता है, कोई सोच रहा है, सोच चुका है, डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं इतनी देर से भौंक रहा हूं, क्या भौंक रहा हूं मैं? और लोग कुछ तो टाइप करो, एबीसीडी कुछ तो डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, बोलिए। ठीक है। सानवी व्यास कौन है? ये है यस चश्मे सर। वाली महिला। क्या समझ नहीं आया आपको, बोलिए। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? दोबारा पढ़ दूं? अंग्रेजी नहीं आती, या लेंस की फोकल लेंथ नहीं समझ आती, या सेंसर साइज नहीं समझ आता? सेंसर साइज। सेंसर साइज। अपने घर में कंप्यूटर है तुम्हारे पास? लैपटॉप है। लैपटॉप है। लैपटॉप को कभी खोल के देखना अंदर से, उसके पीछे एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड को देखने के बाद खोपड़ी घूम जाती है। घूम जाती है ना? कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर तुम्हें एलन मास्क के स्पेस सेंटर में ले जाया जाए, घुमा फिरा के वापस लाए, तो तुम तो बेहोश हो जाओ। तुम्हें छोटी सी चीज नहीं समझ आ रही है। दोबारा देखते हैं हम लोग ऊपर जाके। आंसर वुड बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी क्वेश्चन को समझ लो दोबारा से। अगर 50 mm का लेंस है, एक सर्टेन कंपोजिशन दे रहा है टू मेंटेन द सेम फ्रेमिंग व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ए फुल फ्रेम सेंसर टू ए क्रॉप सेंसर। अब देखो फुल फ्रेम सेंसर कहां है मेरा? ये रहा, बड़ा वाला फुल फ्रेम सेंसर है। और मैं चला गया छोटे सेंसर पे, तो छोटा सेंसर तो इतना एरिया इस्तेमाल कर रहा है, मुझे पूरा का पूरा चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? पीछे जाऊंगा। पीछे जाऊंगा का मतलब, अगर दीवार है पीछे तो क्या करोगे? पीछे नहीं जा सकते। तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? आप वाइड एंगल लेंस ले लो। वाइड एंगल में यहां से वहां तक कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा? मैं वही बात पूछ रहा हूं। तो यहां पर वाइड एंगल लेंस कौन सा दिखाई दे रहा है 50 mm के बाद? सानवी व्यास, 50 mm के बाद वाइड एंगल लेंस कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें यहां पर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वाइड एंगल लेंस किसको बोलते हैं सानवी? वाइड एंगल लेंस इन चार लेंसों में से कौन से वाला है? हाँ जी, बोलो। ये चार लेंस एबीसीडी है, इसमें वाइड एंगल लेंस कौन सा है? चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद और तैयारी करके आओगी तो अगले साल पास हो जाओगी। ठीक है, डोंट वरी। वन मोर ईयर। हाउ ओल्ड आर यू? 19। 9? Oh, you have a lot of time. I went when I was 24. You have 5 more years. Don't worry. ओके। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा वाइड एंगल लेंस कौन सा है इसमें, तो उसको अभी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की है। 32 mm वाइड एंगल लेंस है, सिंपल आंसर है, बट ये घुमा फिरा के पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ, सीधा सीधा नहीं पूछा हुआ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सानवी, बहुत सारे वीडियो के यूट्यूब पे बड़े बड़े महंगे तरीके से वीडियो लेक्चर लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको जाके खोल के देखो। मैं तुम्हें एक लिस्ट भेजूंगा, बहुत सारे वीडियो चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तुम भी सब्सक्राइब करो। उसमें देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल हैं, पढ़ोगे सुनोगे तो समझ आएगा। हाँ जी। इन प्रैक्टिकल फोटोग्राफी ए स्मॉलर सेंसर आर ऑफन यूज इन स्मार्टफोन्स। व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सेंसर्स? बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया फोकस में होती है, इसका मतलब वेरी वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड। तो करेक्ट आंसर इज बी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस। टेक्निकल क्वेश्चन वो था जो मैंने पूछा ऊपर, ये कॉमन सेंस है। बट कभी कभी टीचर जो है लीनियंट भी होता है कि चलो बच्चों को थोड़े थोड़े मार्क्स फोकट में बांट दो। Which of the following best explain why full frame cameras are preferred for portrait photography in terms of depth of field? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए क्या है कि दे कैन अचीव शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो सिंपल एक आंसर करेक्ट है, डी। अब थोड़ा क्रॉप सेंसर की बात कर लेते हैं, जो छोटे छोटे सेंसर है, एपीएस सी एच जो हमने बात की है, हाई कोर्ट एच सी वाला जो चक्कर है, उसको क्रॉप सेंसर बोलते हैं। क्रॉप फैक्टर की भी बात करेंगे हम नीचे अब थोड़ी देर बाद। क्रॉप सेंसर कैमरा फॉर सेम फ्रेमिंग एंड अपर्चर कंपेयर्ड टू फुल फ्रेम गिव। छोटा है, क्रॉप सेंसर छोटा होता है, तो छोटा होगा तो क्या करेगा, फुल फ्रेम वाले से डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगी उसकी, हमने बताई अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो डीपर और लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड उसमें आपको मिलेगी। ठीक है जी। आइए, व्हाट इफेक्ट डज सेंसर साइज हैव ऑन डेप्थ ऑफ फील्ड? एक घंटे से हम बातें कर रहे हैं, आधे घंटे से, कि स्मॉलर सेंसर साइज विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फील्ड यूजिंग ए लार्जर सेंसर? इंक्रीज की बात कर रहा है, अगर लार्जर में चले आओगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी। डिक्रीज सब्जेक्ट डिस्टेंस, कम करोगे सब्जेक्ट डिस्टेंस, डिक्रीजिंग सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फील्ड? और सब्जेक्ट मेरा कम हो गया तो मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम हो गई। सब्जेक्ट मेरा ज्यादा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगी। यूजिंग ए स्मॉलर अपर्चर। क्यों? क्योंकि स्मॉलर जैसे ही आप कट डाउन करेंगे अपर्चर, आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग आईएसओ कोई लेना देना नहीं है। Which of the following sensor will practically provide the greatest depth of field? मीडियम फॉर्मेट, फुल फ्रेम, एपीसी 1 इंच। तो मैंने आपको बताया वो उधर से चालू कर दो पढ़ना। फुल के बाद मीडियम आता है, मीडियम के बाद आता है स्मॉल, फुल मीडियम, उसके बाद हाई कोर्ट एच आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद 1 इंच आएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? सब लोग लिखेंगे दोबारा से, नकल मत मारना, गड़बड़ हो सकती है। सरगम भटनागर गूगल में ढूंढ लो, जैसे तुमने अपना असाइनमेंट किया है गूगल में ढूंढ के। मैं बताऊंगा अभी जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे कि तुमने कहां से कट पेस्ट किया है। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई बी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, बट डी बोल रहे हैं सब लोग ज्यादातर, तो डी होगा करेक्ट। तो समझ आ गया सब लोगों को? बात समझ आ गई? यस सेंसर के सर। ऊपर अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये लाल रंग वाला क्वेश्चन जो है, जिसका आंसर मैंने यहां नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा। बट क्योंकि नरेश शर्मा पेपर सेट नहीं करता है, इसलिए हो सकता है ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आए। खेल वही है, जो इजी क्वेश्चन तो हर आदमी कर देगा, जो डिफिकल्ट करेगा वही आदमी कहलाएगा अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। ट्रू फॉल्स आएगा नहीं, बट ट्रू फॉल्स भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं एमसीक्यू के, मैंने ये वैसे ही पकड़ लिया है। इफ एपीएससी इज यूजिंग ए 50 mm लेंस, डिफिकल्ट है ध्यान से सुनना। इफ एपीएससी इज यूजिंग ए 50 mm लेंस टू गेट द सेम फ्रेमिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हाँ जी बोलिए, पहले वाला ट्रू है या दूसरा ट्रू है? ये लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग करेक्ट आंसर देंगे दोनों का बताना है ट्रू फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, या दोनों ट्रू हैं? दोनों भी हो सकते हैं ट्रू दोनों गलत भी हो सकते हैं। तो 4 अल्टरनेटिव है, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों गलत, दोनों ठीक। प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, कि नहीं?
अगर इसको मैं क्वेश्चन का पार्ट बना दूं और फिर मैं बोलूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 1 and 2, बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर फॉल्स, बोलिए, लिखना चालू कर दीजिए सब लोग। ये पुराना आंसर है या अभी नया वाला आंसर? कहां से चालू हुआ है नया वाला आंसर? 26 26 26 27 27 28, 26 26। हाँ जी, यहाँ जो पहले लिखा हुआ है 65 mm, यहां से टाइप करना चालू करो लोग। ये 65 mm जो लिखा हुआ है इसके नीचे आप दोबारा से टाइप कर दीजिए अगर गलती से किसी ने ऊपर किया हुआ है पहले। मदन मोहन मालवीय के बाद जनता टाइप करेगी। बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, बोथ 1 and 2। 165, एक ट्रू है 65 वाला, दूसरा फॉल्स है। करो टाइप। इतना टाइम तुम्हें अभी लग रहा है जब भी आधे घंटे से मैं बोल रहा हूं। फ्रेशली तुम्हारी मेमोरी में होना चाहिए ये सब कुछ। 20 दिन बाद पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारा। 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स। अद्रीज, खोल बेटा अपना कैमरा। अद्रीज बाबू, अद्रीज बैनर्जी, अद्रीज चटर्जी, व्हाट इज योर फुल नेम? अनम्यूट। Boshak, sir. यू आर बंगाली? Yes. वेरी गुड। सो एक्सप्लेन व्हाई 1 is true and second is false. Sir, because APSC to full frame to APSC is 1.33 crop factor. If we multiply 50 into 1.33 or 1.5, then it would come around बहुत 70 to कॉम्प्लिकेटेड 70. आदमी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी है। ये कहाँ कैलकुलेटर में घुस गया तू फालतू के? कौन सा कैलकुलेटर लगा रहा है? कॉमन सेंस लगा बेटा, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस समझता है? इन विच नो कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड। मैथमेटिक्स ऑनर्स थोड़ी ये पेपर है ये कि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेटर तू समझा रहा है लोगों को। तो कॉमन सेंस है। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था आपको? मीडियम, मीडियम फॉर्मेट, फुल मीडियम, मीडियम पहले छोटा, मीडियम लार्ज, ऐसे बताया था मीडियम फॉर्मेट। फिर लार्ज बताया था, फिर हाई कोर्ट बताया था, एच और सी। ठीक है। और हाई कोर्ट के बाद क्या बताया मैंने आपको? 1 इंच, और 1 इंच और 1 के inch. बीच में 4/3, और उसके बाद में स्मार्टफोन। ये मैंने फॉर्मूला समझाया था तुम्हें। तो अभी क्वेश्चन क्या है आपका कि एपीसी, सी का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट से पहले, एच के बाद आता है सी। ठीक है जी। तो एच जो है पहले आएगा, एच पहले आ रहा है तो एच का सेंसर क्या होगा? छोटा होगा पीछे से सेंसर, उसका सेंसर छोटा होगा। तो सेंसर अगर छोटा होगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ व्यू उसका कम होगा। सो इट विल बिहेव लाइक ए एज इफ इट इज ए टेलीफोटो लेंस। कैसे दिखेगा? फोटो देखो यहां पर, छोटा सेंसर कैसा दिख रहा है? ऐसे कि टेलीफोटो लेंस है ये। ठीक है जी। तो व्हाट विल हैपन कि जो सी वाला आपका आंसर है, एपीएच वाला जो आंसर है, उसमें अगर सी जो हाई हाई कोर्ट में एच पहले आता है, सी बाद में आता है। तो सी अगर लार्ज, सी अगर 50 mm दिख रहा है, अगर सी आपको 50 mm दिख रहा है तो एच का सेंसर साइज बड़ा है। एच का सेंसर साइज बड़ा है तो वो क्या बिहेव करेगा? टेलीफोटो की तरह। और फुल फ्रेम का सेंसर साइज और बड़ा है तो वो और टेलीफोटो की तरह बिहेव करेगा। उसका मतलब 85 लेंस की तरह बिहेव करेगा वो। बात समझ आ गई? इट विल नॉट बिकम ए 85 mm लेंस, इट विल बिहेव लाइक ए 85 mm लेंस एंड कवर द लेसर एरिया। ये देखो यहां पर, अगर तुम्हें फोटो समझ आ गया, दुनिया खत्म। जैसे ही सेंसर साइज छोटा हुआ
टेलीफोटो की तरह बिहेव करने लग गया वो, तो पूरा एरिया नहीं कवर कर रहा है। इसको घर में जाके और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करोगे तो पल्ले पड़ जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट है, ठीक है जी, क्योंकि फुल फ्रेम इधर है, हाई कोर्ट इधर है, तो दोनों जो है इस साइड है, ठीक है। तो दे विल यूज द विल बिहेव लाइक ए टेलीफोटो लेंस। क्यों? क्योंकि उनका एंगल ऑफ व्यू जो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, अब थोड़ा सा क्रॉप फैक्टर के ऊपर आ जाइए। क्रॉप फैक्टर कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए, दोबारा से मैंने इसको लगा दिया यहां पर, तो क्रॉप फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ मल्टीप्लायर। इट इज अ नंबर दैट हेल्प्स यू कंपेयर द फील्ड ऑफ व्यू, हाउ मच ऑफ ए सीन यू कैप्चर बिटवीन ए क्रॉप सेंसर कैमरा एंड ए फुल फ्रेम कैमरा, ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा मैथमेटिकल सा लग रहा है देखने में, बट है नहीं, ये 6th स्टैंडर्ड क्या 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है। तो क्रॉप फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ द डायगोनल साइज ऑफ ए फुल फ्रेम सेंसर टू द डायगोनल साइज ऑफ ए स्मॉलर सेंसर। लेट्स से एपीसीए है या माइक्रो है, जो भी कुछ सेंसर है उसका साइज होता है। तो अगर कोई से यू यूज ए 50 mm लेंस फॉर एग्जांपल, उन्हें फुल फ्रेम कैमरा, इट बिहेव एज ए 50 mm। तो जैसे ही ये ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो जैसे ही ये एपीसी के ऊपर आया, फुल फ्रेम से इधर आ गया, तो फुल फ्रेम से इधर आया तो क्या हुआ, उसका सेंसर छोटा हो गया। सेंसर छोटा हो गया तो इट विल बिहेव लाइक ए 80 mm, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। मैंने ऊपर फोटो दिखा रखा है आपको यहां पर, ये देखो, जैसे सेंसर छोटा हुआ टेलीफोटो की तरह बिहेव कर रहा है वो, ठीक है जी। और उससे और छोटा मेरा सेंसर है तो क्या होगा, और टेलीफोटो की तरफ चला जाएगा वो 100 mm के आसपास। तो जैसे जैसे क्रॉप फैक्टर का नंबर जो है बढ़ता जाता है, मतलब क्या हुआ, जैसे इधर देखो, फोटो देखो, इस फोटो को, क्रॉप फैक्टर का जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे मेरा सेंसर जो है साइज छोटा होता जाता है। ये बात समझ आ गई? एज माई क्रॉप फैक्टर नंबर इंक्रीजेस, माई सेंसर साइज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये बात समझ आ गई एनालॉजी आप लोगों को? चलिए, अब बड़े सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन है, खटाखट खटाखट आंसर देते हैं। An APS-C sensor compared to full frame sensor at 50 mm and 2.8 will have what? सेम तो हो नहीं सकती डेप्थ ऑफ फील्ड, सेम डेप्थ ऑफ फील्ड एज फुल फ्रेम, नो, दोनों सेंसर साइज अलग है, कैसे हो सकती है? एपीएस का सेंसर जो है, सी साइज जो है छोटा है उसके सेंसर से, तो छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा हो जाएगी फुल फ्रेम से। करेक्ट आंसर इज बी। राइट और रॉन्ग? बात खत्म। इतने क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मेरी गट फीलिंग बोलती है कि आना चाहिए, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे बढ़े हम, 7 नंबर खत्म हो गया मेरा। अब मैं पहुंच गया कौन से नंबर पे, बैक फोकस। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है बैक फोकस। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं थोड़े से, कल और भी डिस्कस करेंगे उनको। कितने क्वेश्चन मैं थोड़ा देख लूं पहले, बहुत ज्यादा है। चलो थोड़ा 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 कर लेते हैं, 11 बजे तक कर लेते हैं, जितना समझ आएगा 11 बजे के बाद बंद कर देंगे। 1 मिनट का टाइम दो। ओके, चलिए। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को पूछ लीजिए, नहीं पूछना मत पूछिए। तो लेंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम है फोकल फ्लैंज डिस्टेंस। फोकल फ्लैंज डिस्टेंस और जो बैक फोकल डिस्टेंस होता है, ये प्रैक्टिकल पर्पस में सेम होता है, बट एक्चुअली टेक्निकली डीप डाउन इट इज नॉट सेम, बट फ्रॉम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू इन डे टू डे लैंग्वेज इट इज कंसिडर एज ए सेम, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे माउंट्स हैं, ये सी माउंट, सी एफ माउंट, एफ माउंट, ये भी बात करेंगे हम लोग। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग माउंट बनाती है। हर आदमी चाहता है कि हमारा अलग हो। जैसे एप्पल का जो कंप्यूटर होता है, हर चीज के लिए कंपेटेबिलिटी ढूंढते रहो, हर चीज एप्पल कंपेटेबल नहीं होती है। तो इसीलिए हर कंपनी अपनी कंपनी को यूनिक बनाने के चक्कर में अपना एक अलग से माउंट बना के बैठ जाती है, ठीक है जी। और एक दूसरी कंपनी एडेप्टर बनाती है। अगर आपके पास सी माउंट है और एफ माउंट का लेंस है, तो उसमें एक एडेप्टर चाहिएगा जो एडेप्ट करेगा उसको, उसको फिट कर देगा, ठीक है जी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो फोकल फ्लैंज डिस्टेंस को आप समझ लीजिए। तो जैसे ही आप लेंस को
बैरल के ऊपर वहां फिट करते हैं, उसके बाद एक क्लिक की आवाज आती है और वो लॉक हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आप दो टाइप के लेंसेज दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक लेंस जो है वाइड एंगल लेंस है और एक लेंस जो है टेलीफोटो है या नॉर्मल है। ठीक है जी। तो कोई आज समझदार आदमी बता सकता है मुझे दोनों फोटो देख के कि कौन सा वाइड वाला है? टाइप करो। अगर वाइड एंगल बॉटम वाला है तो टाइप करो बॉटम, और वाइड एंगल ऊपर वाला है तो टाइप करो टॉप। चलो फटाफट फटाफट टाइप करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो समझ आ गया सब लोगों को बॉटम वाला क्यों? क्योंकि जो लेंस छोटा सा दिख रहा है वो वाइड एंगल ही होगा। ठीक है जी। और अब डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं हम लोग। अगर ये बड़ा सिंपल है, सबको समझ आ गया फटाक से। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाऊं तो तुम लोग फंस जाओगे। तो वो कुछ एक चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। अभी उस टेबल पे हम लोग आएंगे, क्योंकि कोई पागल आदमी अगर पेपर बना रहा है तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में फंसा देगा तुमको। तो 4 नंबर आपको याद करने हैं, अभी हम बात करेंगे। सो व्हाट इज द बैक फोकस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस माउंट टू द सेंसर और ए फिल्म प्लेन। बड़ा सिंपल है, याद कर लेंगे आप लोग, ढूंढ भी लोगे। करेक्ट बैक फोकस विल रिजल्ट सब्जेक्ट अपियरिंग इनकरेक्ट, सॉरी, इनकरेक्ट बैक फोकस विल रिजल्ट इन विग्नेटिंग, नो, ओवर एक्सपोजर, नो, सब्जेक्ट अपियर सॉफ्ट और आउट ऑफ फोकस इवन व्हेन फोकसिंग रिंग सेज इन फोकस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। फोकसिंग रिंग तो बोल रही है आपने 5 मीटर का यहां से डिस्टेंस नापा और 5 मीटर पे आपने फोकस रिंग लगा दी, बट आपने फोटो खींचा तो पता लगा आउट ऑफ फोकस है। क्यों? क्योंकि आपका फोकल फ्लेंज डिस्टेंस बैक फोकस डिस्टेंस करेक्ट नहीं है। और ये बहुत क्रिटिकल होता है, 0.001 भी इधर उधर हो जाए तो इट विल थ्रो द इमेज आउट ऑफ फोकस। ठीक है जी। तो विच पार्ट ऑफ द कैमरा डिटरमाइन बैक फोकस डिस्टेंस? फोकल फ्लेंज डिस्टेंस। ठीक है जी। बैक फोकस डिस्टेंस तो फोकल फ्लेंज डिस्टेंस मैंने भी अब आपको बताया, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज के लिए सेम होता है, बट एक्चुअली में नहीं होता है। बैक फोकस एरर आर कॉमन व्हेन एडेप्टिंग लेंस अक्रॉस डिफरेंट माउंट। कोई ई एफ माउंट है, कोई लेंस वो है, तुमने कुछ उसको एडेप्टर लगा लू के जोड़ तो दिया, बट अगर वो एडेप्टर ठीक नहीं है मान लीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका फोकल फ्लेंज डिस्टेंस गड़बड़ हुआ तो आपका एरर इमेज के अंदर आएगा। ठीक है जी। बैक फोकस इश्यूज अफेक्ट विच काइंड ऑफ फोकस द मोस्ट? ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस, क्योंकि बहुत सारे कैमरे होते हैं जिसमें ऑटो चल रहा होता है। ठीक है जी। और आप मैनुअली भी कर रहे हैं तो आपने आंख से व्यू फाइंडर में देखा कि फोकस हो रहा है। अगर आंख से आप देख रहे हो व्यू फाइंडर में तो फोकस हो गया। अभी पीछे जो चल रहा है फोकल फ्लेंज डिस्टेंस, उससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि वो पेंटाप्रिज्म से इमेज जो है व्यू फाइंडर में दिखाई देती है आपके, तो इमेज पीछे तो गई नहीं। अगर थोड़ा बहुत बैक फोकस हिल गया 0.001% भी तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो कैसे पता करते हैं? अगर आप जूम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन जूम लेंस। जूम लेंस को जब टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं आप लोग? कराया कभी जिंदगी में टेस्ट तुमने? किसी आदमी ने जूम लेंस टेस्ट किया है? नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है जी। ये फोटो होता है, ये एक फोटो है जो कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर क्या होता है? ये लेंस दिख रहा है एरी का, ये कौन सा लेंस है? कोई बताएगा फटक से ब्रांड का नाम? पढ़ नहीं सकते वहां से दूर में, लिखो फटक से। रेडी। एरी तो हर एक को पता है, वो एरी पढ़ने में आ रहा है। ब्रांड कौन सी एरी का है? कौन सी ब्रांड का लेंस है? इसको दूर से देख के पता लग जाना चाहिए तुम्हें। CP2 नो, CP3 नो। सबसे एक्सपेंसिव लेंस एरिका सिग्नेचर प्राइम लेंस है। दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर प्राइम लेंस। ये हरा हरा सा जो दिख रहा है आपको, इससे पता लगे, ये वाला नहीं साइड में रखा है, ये तो अलग है, ये फूजी का लेंस है। ये एरी जो ऊपर लगा हुआ है ये सिग्नेचर प्राइम लेंस है, जो कि बड़ा महंगा आता है। ठीक है जी। लेंस के ब्रांड की ये बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये कैलोरीमीटर होता है जिससे आप चेक करते हैं फोकल फ्लेंज डिस्टेंस, और ये एक छोटा सा मीटर है जिससे आप डेंसिटी चेक करते हैं। तो ये डेंसिटोमीटर है। डेंसिटी किसकी चेक करते हैं आप? निगेटिव की। डेंसिटी किसकी चेक करेंगे आप? निगेटिव। या अगर आप चेक करेंगे डेंसिटी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो कोई जेल है, जेल की डेंसिटी देख सकते हैं, कितना ट्रांसमिशन है, कितना रिफ्लेक्टेंस है। तो इसके नीचे हम निगेटिव ले जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि डेंसिटी कितनी है इसकी, निगेटिव की।
प्रोसेसिंग के बाद, ऐसा नहीं प्रोसेसिंग से पहले लगा दोगे वहां पे, प्रोसेस करने के बाद निगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट की डेंसिटी मेजर करने के लिए डेंसिटोमीटर है। तो पूछा जा सकता है कि ये कैसे कैलिब्रेट होता है बैक फोकस। तो कोलीमीटर जो है आपको पता होना चाहिए, मैंने अलग अलग उटपटांग के नाम लिख दिए हैं, सीआरआई मीटर, कोलीमीटर, डेंसिटोमीटर, डेंसिटोमीटर दिखा भी दिया है तुम्हें, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। If the back focus is off, the lens will go out of focus when zooming, even if it was perfectly focused at one end. ये ब्रह्म ज्ञान है 2 सेंटेंस का जो मैंने येलो मार्क किया हुआ है, इसको समझो कि मैंने मैंने अपने कैमरे में बैक फोकस एक जूम लेंस लगाया, मान लीजिए 28 to 200 mm, right? So I'm going to check now. So I will see what is the minimum focusing distance. Let's say, for example, 10 feet. Okay. So instead of 10, I would put it at 11 feet. 11 feet, I would put any high contrast object, maybe a black and white book, or it has to be plain. It has to be flat. Something like this, I'll show you quickly. This is a contrast card. It has a particular name. We will talk about it later on. Okay. So something like this, high contrast, so that I can easily figure it out. Okay. So what I'm going to do is, first I will go full tally. Then I would focus 11 feet, 12 feet, whatever it is. Okay. Now I am going to slowly zoom out to the widest possible focal length of that particular length. So since the focusing distance is fixed, focus cannot shift. So if focus is not shifting, which means image is not becoming out of focus, it means my zoom lens is correct. बात समझ आ गई सब लोगों को? अब मैं तुम्हें एक अजीब सा उदाहरण देता हूं. I was shooting a feature film in Rajasthan once upon a time, many years back. Now it has a very सरकारी zoom lens. सरकारी जूम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल FTI, सरकारी लोग हैं, सो रहे हैं अपना आराम से, अभी तक उन्होंने किसी ने वहां पर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लोड नहीं किया आज की तारीख तक. तो जो सरकारी लोग होते हैं वो आराम से कुछ उठा के लेके आ जाते हैं. तो सरकारी जूम लेंस था, और वो सरकारी जूम लेंस के अंदर एक खतरनाक चीज थी जो मुझे बड़ी लेट समझ आई. वो खतरनाक चीज क्या थी? मैंने जूम टेस्ट किया तो शुरू में तो मुझे नहीं पकड़ में आया वो बात ध्यान से, बट जब मैंने जूम लेंस टेस्ट नहीं किया और मैंने उसको यूज करना चालू किया, तो मैंने देखा जब जूम आउट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के ऊपर द इमेज गोज आउट ऑफ फोकस. Image goes out of focus. So what I did is, I have to use the zoom lens sometime, but let's say for example, if the zoom lens is 28 mm to 200 mm and the out of focus happens at 80 mm. So either I would use from 85 mm to 200, so that in between the focal length will not come, or I will use from 28 to 75 mm. So whenever I am zooming out, these are the two range I cannot cross in between. So that once that focal length will not come, image will still be in focus. So sometime it can happen when you're zooming out, in between at one particular focal length, the image can go out of focus. और क्यों होता है? Because of the back focus focal length distance. Is it clear to everybody? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना. Electronic news gathering, ENG stand for electronic news gathering, which means inside the studio or maybe outside, there is where the video cameras is used, there is a back side, there is a button called back focus. So back focus button को कहां चेक करते हैं? सबसे पहले हम लोग उसको फुल टेली लेके जाते हैं, ठीक है जी. उसके बाद उसको फुल वाइड में लेके आ जाते हैं, एंड देन वी एडजस्ट द बैक फोकस. वाइड एंगल के अंदर हम बैक फोकस एडजस्ट करते हैं, और अगर वाइड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे when the image is correctly sharp, we lock it. So after that, when you zoom in, zoom out, it will not shift. So manually you have to set some time in the, technically it is automatically set, but you can unlock it, unscrew it, and you can move a little bit here and there, and you can see image is going out of focus, and you have to check it at the extreme wide side. Extreme wide side, it will go
because earlier I also told you there is something called depth of field and something called depth of focus, DOF. डेप्थ ऑफ फोकस की भी हमने बात की थी। तो जो वाइड एंगल लेंस होता है डेप्थ ऑफ फील्ड का उल्टा चलता है वो। अगर किसी लेंस की डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है कंपैरेटिव टू अनदर तो इसका डेप्थ ऑफ फोकस कम होगा। इट इज अपोजिट टू द डेप्थ ऑफ फील्ड। So it is basically a margin within which a focus can move, but it will still be acceptably sharp. Not 100% sharp, it will be acceptably sharp. So it will be reverse of depth of field. ठीक है जी। तो बैक फोकस का लेना देना किस चीज से है? डेप्थ ऑफ फोकस से लेते हैं। सो ईएनजी कैमकॉर्डर के अंदर बटन होता है जिसको कैलिब्रेट करके आप करेक्टली फोकस कर लेते हैं। विच लेंस टाइप इज मोस्ट सेंसिटिव टू द बैक फोकस? अभी हमने बात की आपको वाइड जूम लेंसेज। जूम लेंसेज के अंदर जैसे जैसे बहुत सारे फोकल लेंथ होती है तो किसी भी एक पॉइंट पे जाके जूम जो है आउट ऑफ फोकस हो सकता है। सो इट इज मच मोर क्रिटिकल। जो ब्लॉक लेंसेज है उसमें थोड़ा कम चांसेस होता है बट हो जाता है उसमें भी कभी कभी। कैसे? देयर वाज I came to know through a friend of mine who was assisting a big cinematographer. So they shot a footage, and while coming back, the camera was locked with the lens itself. Normally, you take out the lens and put the camera with a cap. So lens was let it be on the camera, and it was packed. So when they were coming, it was very bumpy road, and because of bumping, camera lens might have moved a little bit here and there. I don't know how. So back focus of that lens got shifted. So next day when they shot the footage, they did not realize because focusing was correct. So when they processed the footage, then they realized, oh, image is out of focus, and he is a very established cinematographer. It cannot happen. So this colleague of mine who was assisting told me later on that was the reason. When they checked the back focus of those various lenses, they realized that particular lens was out of focus because the back focus got shifted. ठीक है जी। तो वाइड एंगल ब्लॉक लेंसेज, टिल्ट शिफ्ट और टेलीप्रॉम्प्टर, सॉरी टेलीकन्वर्टर एंड टेलीप्रॉम्प्टर अलग अलग चीज होती है। टेलीप्रॉम्प्टर लेंस के आगे लगता है जो न्यूज रीडर पढ़ते हैं, उसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। ये टेलीकन्वर्टर है। टेलीकन्वर्टर का क्या काम होता है? इट कन्वर्ट वेरियस माउंट्स। ठीक है जी। और एक 2x कन्वर्ट होता है, 1.5 होता है, एक और कन्वर्टर टाइप का होता है। कन्वर्टर जो है एक दूसरे टाइप का भी होता है जो 100 mm लेंस को 200 mm बना देता है। फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए भी कन्वर्टर होता है। ठीक है जी। और ये टेलीकन्वर्टर है। टेलीकन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि जो these are the optical accessories placed between the lens and the camera. They do not have a zoom range of their own because they are fixed, and their effect on the focus is minimal comparative to improper mounting on the lens and defect. तो ये कन्वर्टर समझ आ गया आपको? लेंस माउंट का भी कन्वर्टर होता है। एक माउंट को दूसरे माउंट में चेंज करना है तो उससे भी कर सकते हैं। टेली कन्वर्टर ऑप्टिकल भी होता है जिसमें आप फोकल लेंथ को 100 mm को 200 mm बना सकते हैं उस कन्वर्टर को लगा के। तो अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। बैक फोकस एडजस्टमेंट इज कॉमनली अवेलेबल ऑन विच टाइप ऑफ कैमरा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ईएनजी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग कैमरा। वीडियो कैमराज होते हैं, वीडियो कैमराज के अंदर वो सब लगा होता है। तो यहाँ पे भी लिखा है सिनेमा कैमरा के अंदर ऐसा कोई बटन नहीं होता। रेड एलेक्सा, वेनिस, ब्लैक मैजिक, इनमें कोई बटन इस टाइप का नहीं होता है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिख दिया है जिससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। विच कंपोनेंट एंश्योर्स करेक्ट बैक फोकस इन डीएसएलआर कैमरा सिस्टम? मिरर अलाइनमेंट एंड फ्लेंज डिस्टेंस। ये मिरर अलाइनमेंट का क्या चक्कर है कि आपका जो जहां से इमेज रिफ्लेक्ट होकर पेंटाप्रिज्म में जाती है और आप आई पीस से देखते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत हिल जाए, ठीक है जी, तो गड़बड़ हो सकता है। और या बैक फोकस के अंदर फोकल फ्लेंज डिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। डीएसएलआर हो या एसएलआर हो, बात केवल इतनी है कि वहां पर निगेटिव नहीं है और यहां पर सेंसर है। दैट्स इट। सो विच कंपोनेंट एश्योर रिजोल्यूशन, फ्लैश, आईएसओ, फाईएसओ कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू बी कंसर्न विद द मिरर अलाइनमेंट एंड फ्लेंज डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, जल्दी से और पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अभी 5-7 मिनट है हमारे पास। अब देखो इसमें बहुत सारे डायमीटर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर ये इतने सारे नंबर हमें कैसे याद रहेंगे?
इतने सारे नंबर हम कैसे याद करें? तो थोड़ा सा उसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं, नीचे जाओ। ये देखो, फुल फ्रेम फुल फ्रेम फुल फ्रेम जो बोल रहे हैं ये लोग, सोनी का ई माउंट, कैनन का आरएफ माउंट, निकॉन का जेड माउंट, लाइका का एल माउंट, ये स्टिल फोटोग्राफी वाले लोग हैं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा हम जब बाकी के भी स्टिल हैं, ये निकॉन फिकॉन ये सब लोग जो है, बट अगर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखो 52, 44, 29, 18 एंड 46, इसका भी थोड़ा सा और सिंपल वर्जन में दिखा देता हूं। ये देखिए, तो कैनन का जो EF DSLR माउंट है उसका 44 के आसपास होता है। आसपास इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट नंबर जब तक कैलकुलेट करोगे तब तक नहीं पता लगेगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप में आ जाए तो तुम फंस सकते हो, क्योंकि नंबर वंबर याद करना बड़ा झंझट का काम होता है। बट फिर भी 4 नंबर जो है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा जो आपको याद करने हैं जरूरी। विच सिग्नल कंफर्म बैक फोकस इशू ड्यूरिंग ए लेंथ टेस्ट, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो। कंफ्यूजिंग किया हुआ है मैंने जानबूझ के इसको। हिस्टोग्राम का सिग्नल सिग्नल लेवल अपवर्ड डाउन हो नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है बैक फोकस का। बैक फोकस शिफ्ट एंड जूमिंग, अगर जूम के अंदर बैक फोकस शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब लेंस में कोई प्रॉब्लम है। वेक्ट्रोस्कोप का लेंस से कोई लेना देना नहीं है। वेव फॉर्म मॉनिटर का लेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये दो चीजें क्या है, वेक्ट्रोस्कोप, वेव फॉर्म मॉनिटर, ये मैं छोटा सा एक दिन आपको कुछ 8-10 MCQ क्वेश्चन सिंपल सिंपल से बना के, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ये वेक्ट्रोस्कोप, वेव फॉर्म मॉनिटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि 3 कैमरा सेटअप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। 3 कैमरा सेटअप जब आप लेते हो वीडियो के अंदर तो वहां वेव फॉर्म मॉनिटर इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, डीप में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डीप में मुझे भी नहीं पता है और मुझे जितना पता होना चाहिए उतना पता है। ठीक है जी। दे आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बट यूज इन मल्टी कैमरा सेटअप, और क्या पर्पज है वो थोड़ा बताऊंगा। हाँ जी। वाई इज बैक फोकस एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट इन पैराफोकल जूम लेंसेज? पैराफोकल मतलब जहां पर फोकस शिफ्ट नहीं हो रहा है। इट स्टेबलाइजेज द इमेज, इट इमेजेस, इट मेंटेन अ फोकस वाइल जूमिंग, जूमिंग जूम आउट कर रहे हो तो फोकस जो है मेंटेन होता है उसके अंदर। इट एलिमिनेट लेंस फ्लेयर, इट कंट्रोल शटर लैग, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। तो जूम लेंसेज के अंदर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है आपके फोकस को, वरना फोकस अगर बीच में आउट हुआ जैसे मैंने आपको बताया तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये कंट्रास्ट चार्ट है, रिजोल्यूशन चार्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये करेक्ट वाला रिजोल्यूशन चार्ट नहीं है, बट ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, जैसे ही आप बैक फोकस जूम आउट करेंगे ये लाइनें जो है मर्ज नहीं हो जानी चाहिए आपस में, दे शुड रिमेन क्लियर। रिजोल्यूशन चार्ट भी बोलते हैं इस लोगों को। हाँ जी। सो बैक फोकस शिफ्ट आर मोर नोटिसेबल इन टेलीफोटो लेंसेज एंड जूम लेंसेज। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे उसके अंदर तो जल्दी से पता लग जाता है उसमें, क्योंकि इमेज जो है बड़ी इमेज होती है। बैक फोकस प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, अब ये रफ लेंस माउंटिंग भी हो सकता है, मिस अलाइनमेंट भी हो सकता है, एडेप्टर की थिकनेस करेक्ट नहीं है वो भी हो सकता है, कलर प्रोफाइल सेटिंग का कोई लेना देना नहीं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं पता वो फंस जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग एंड सिने यूजेस, क्या मतलब हुआ इसका कि बैक फोकस चार्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट एंगल फॉर प्रॉपर कैलिब्रेशन, तो आप चार्ट लेंस के सामने रखोगे। अब सामने रखोगे तो कितना एंगल हो गया चार्ट और लेंस के बीच में? 90 डिग्री। करेक्ट और नॉट? टिल्ट थोड़ी करोगे उसको एंगल बना के, सीधा रखना पड़ेगा उसको एकदम से। तो सीधा रखोगे तो 90 डिग्री। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बट फिर भी कंफ्यूज हो सकता है आदमी। कोई हो सकता है फ्लैट टू कैमरा लिख के आ जाए। If a zoom lens shift focus when zooming in and out, this could indicate incorrect back focusing. अगर फोकस शिफ्ट हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताई, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक फोकस में प्रॉब्लम है। मॉडर्न मिररलेस कैमरास ऑफन अवॉइड बैक फोकस इश्यूज, क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अपने आप में अगर आप नहीं समझेंगे। दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 साल से आ रहे हैं मिररलेस कैमरा, तब क्या था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस जमाने में? नहीं था। करेक्ट, पहला आंसर गलत हो गया। दे यूज सॉफ्ट लेंसेज, ये भी बकवास है। लेंस सॉफ्ट और वो थोड़ी होता है हार्ड, और लेंस तो लेंस है, फोकस में होता है, सब कुछ शार्प होता है। फिल्टर थोड़ी है कि सॉफ्ट फिल्टर है और ये है वो है। फिल्टर सॉफ्ट हो सकता है, लेंस सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है जी। तो दे यूज सॉफ्ट लेंसेज? नो। दे हैव बिल्ट इन कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर? ऐसा तो नहीं होता है उसमें। मिररलेस के अंदर बिल्ट इन है तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो क्योंकि दे लैक ए रिफ्लेक्स मिरर अलाउइंग एक्यूरेट सेंसर डिस्टेंस। मिररलेस कैमरा क्यों कहलाता है?
क्योंकि उसके अंदर कोई मिरर नहीं है, राइट? कि मिरर ऊपर जाएगा, ठक से आवाज करेगा, फिर लेंस में लाइट घुसेगी और फिर पिक्चर फोटोग्राफ बनेगा। तो जब वहां मिरर है ही नहीं तो झंझट खत्म। इसीलिए मिररलेस जो कैमरा होते हैं वो हल्के भी होते हैं। डीएसएलआर कैमरा जो होता है वो भारी होता है, एसएलआर कैमरा भी भारी होता है, ठीक है? तो ये बात कॉमन सेंस की है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। हाँ जी, बैक फोकस करेक्शन इन ब्रॉडकास्ट कैमरा इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग स्मूथ कलर टोन, कीपिंग द सब्जेक्ट फ्रेम, मेंटेनिंग एक्यूरेट फोकस व्हाइल चेंजिंग द फोकल लेंथ लाइव। ठीक है जी, जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो वहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। हाँ जी, ये 3 नंबर जो है मैं आपको बोल रहा था, ये याद करने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। पूछ सकता है कोई आदमी, अगर तुम्हें दुखी करना चाहे तो तुम्हें पूछ सकता है, ठीक है? कि सोनी का जो ई माउंट होता है उसके अंदर 18 mm के आसपास फोकल फ्लैंज डिस्टेंस होता है। पीएल माउंट सबसे इंपॉर्टेंट माउंट है। सिनेमा के अंदर जो भी एक्सपेंसिव होते हैं वो पीएल माउंट में बनते हैं, और माउंट में बने ना बने। अगर कोई अपने आप को बोलता है मैं सिनेमा लेंस हूं, तो वो पीएल माउंट में होना उसका बहुत जरूरी है। पीएल स्टैंड फॉर पॉजिटिव लॉक, अभी और थोड़ी बात करेंगे हम लोग। तो पीएल माउंट जो है रोबस्ट होता है, और सिनेमा के अंदर भारी भारी लेंसेज होते हैं तो उसके लिए और जरूरी है, और उसकी क्वालिटी वालिटी और सब चीजें ढंग की होती है। ऐसा नहीं है कि ईएफ माउंट में ढंग का नहीं होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। सबसे महंगा माउंट एक लेंस 50 mm का, अलग अलग उसमें लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, ठीक है जी? बट कभी कभी नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है, रूल है। बट और लेंस और माउंट से पीएल माउंट हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, अगर आप देखेंगे वहां पे, बट नॉट नेसेसरीली। कुछ कंपनी नहीं करती हैं, कुछ कंपनियां करती हैं। तो ये 3 नंबर आप याद कर लो, 44, 18 और 52, ठीक है जी? तो कैनन सबसे नीचे होता है सोनी। मिररलेस वाले कैमरे को पकड़ के चलो, आप ऐसे सोचो, सोनी मिररलेस में पायनियर है उस तरीके से, कैनन के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नॉर्मली जो माउंट होगा, अगर पीएल ई माउंट है तो 18 होगा, पीएल का 52 हो गया, और कैनन का 44। ये 3 नंबर भी याद कर लोगे तो काफी है, बाकी सब भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, 11 बज गए हैं। वी आर ब्रेक फॉर 10 मिनट एंड देन वी विल डिस्कस द असाइनमेंट यू पीपल हैव सबमिटेड। सारे शायद नहीं कर पाएंगे, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल, एंड दैट इज अनफ। ठीक है जी, चलिए, विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। Okay, I'm back, guys. Please switch on your camera. Can you see me? Yes, sir. No, can you see me means can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. दिखाई दे रहा है इसमें वो जो चारू मुर्मू का नाम दिख रहा है इसमें? No, sir. No. इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट, शेयर शेयर, चारू मुर्मू। हाँ भाई, चारू दिखाई दे रहा है कुछ? ये आ गया, करेक्ट? Yes, sir. Yes, चारू sir. आ गए वापस आप? Yes, sir. ओके, स्टार्ट रीडिंग क्विकली। वी गॉट ए 30 मिनट, रादर 20 मिनट ओनली। चलिए, 5 मिनट के अंदर सब पढ़ेंगे, फटाफट फटाफट बोलिए, पढ़ना चालू कीजिए। Impressionism, a French art movement, started in the late 1860s and officially launched in 1874 by artists like Monet, Renoir, Degas, and uh, Cassatt and हाँ, ये पीपीटी Pissarro. कर रहे हो तो इसका तरीका क्या होता है? गूगल में जाके एवरी वर्ड हाउ इट नीड टू बी प्रोनाउंस यू कैन फाइंड आउट, ठीक है? जैसे एक फ्रांस की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ब्रिगेट बारडोट, ऐसे लोग बोलते हैं उसका उसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है ब्रिजी बारडो। समझ आया? तो तुम्हारा नाम कोई है चारू मरम, आपको बोलेगा चे चू चा ची ऐसे, तो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है? सो यू हैव Yes, sir. टू रिमेंबर दीज नेम क्विकली। ओके, नेक्स्ट।
Name after Monet painting Impressionism. Impression. Sunrise. A critic used Impressionist mockingly in a review, but the artist embraced it. They focused on everyday scenes, parks, cafes, railways, rather than grand historical or mythical subject reflecting modern life in Paris. Initially rejected, the movement ultimately revolutionized art by emphasizing sensory uh, perception, movement, and atmosphere over detailed realism. हाँ जी, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सब लोग इस आदमी को मार्क्स दो 4 में से। चलो लिखना चालू करो सब लोग अपने अपने मार्क्स। तुमको भी ये देगा, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुमको भी ये मार्क्स देगा और मैं भी दूंगा। ठीक है, चलो मार्क्स देना चालू करो फटाफट। 4 में से कितने मार्क्स दोगे तुम इसको? टाइप करो, यहाँ पे टाइप करो, इतना टाइम नहीं बेटा, टाइप करो फटाफट फटाफट टाइप करो। डिस्काउंट मत दे देना। चलो मार्क्स दो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। 4 में से कितने मार्क्स दोगे इसको? दोस्त है थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो इसको थोड़ा। आर यू फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी चारू? Yes, sir. विच वन, एसटी? Yes, sir. ST, sir. ओके, चलो 100 लोग बैठते हैं बेटा उसमें। ये मत सोचियो एसटी है तो मैं घुस जाऊंगा। चलो तो मार्क्स दो भाई, जल्दी जल्दी मार्क्स दो इस आदमी को। सोच क्यों रहे हो? किसी ने 4 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 4 4 4 4। चलो 3.5 4 4 4 4 4 4। मैं इस आदमी को मार्क्स दूंगा कितने? 1। What? 1 मार्क्स का आदमी है मतलब फेल हो गया यार। क्यों? क्यों? इस आदमी ने केवल एक काम की बात करी है इसके अंदर। क्या? कि फ्रेंच आर्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1860 एंड ऑफिशियली लॉन्च इन ब्ला ब्ला ब्ला। और ये 4 जो है पायनियर लोग थे जिन्होंने ये मूवमेंट चालू किया। तुम्हें पता लगता है कि इंप्रेशनिज्म में क्या होता है पेंटिंग के अंदर? इसको पढ़ के क्या आपको समझ आता है कि पेंटिंग में होता क्या है? नहीं आता ना। तो 4 में से 1 मार्क्स क्यों है? पता ही नहीं लग रहा मुझे क्या है ये, क्या हो रहा है पेंटिंग में, क्या खास बात है उसके अंदर। जैसे तुम लोगों के फ्रेम और मेरे फ्रेम में क्या खास बात है? आई एम यूजिंग ए आर्टिफिशियल बैकग्राउंड एंड माई आई लेवल इज देयर। ठीक है, यस और नो? खास बात है कि नहीं? चारू, चारू Yes, लगा? sir. चलो अब नेक्स्ट आदमी आ जाओ फटाक से। इसका एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। इस एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे सब होगा, ऐसे नहीं। हाँ जी, गौरव आनंद जागो, कैमरा खोलो वरना आगे पहुंच जाएंगे हम लोग। गौरव आनंद घूमने गया हुआ है पार्क में। हाँ जी, थर्ड आदमी आ गया हमारा। ये कौन है थर्ड आदमी? हाँ जी, सुरदीप चंद्र दास। हो या घूम रहे हो कहीं इधर Yes, उधर? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, पढ़ो अपना असाइनमेंट इंप्रेशनिज्म का। Write a brief note on any 4 of the following topics. Impressionism is started in France as a painting style. Artists ठीक है, as एक बार को धीरे धीरे चलो यार, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? अच्छा, इसने ये बताया फ्रांस में पेंटिंग का मूवमेंट है। किन लोगों ने चालू किया ये भूल गया बताना। ठीक है, शुरोदीप दास, कलकत्ता के रहने वाले हो? yes, sir. पता कैसे लगा? दास लिखा हुआ है पीछे। दास मुखर्जी बनर्जी चटर्जी आर फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ही तेरा गोल, उसको तो 1 मिल गया। पहले सेंटेंस में तुझको कितने मिलने चाहिए मार्क्स? हाफ, क्योंकि फ्रांस बताया हो, पेंटिंग बताया तुमने, पेंटर का नाम तो बता, भूल गया तू। Yes, sir. बर्थडे बॉयज फोटोग्राफ, केक इज देयर, बर्थडे बॉय इज मिसिंग। If you hire a photographer and your birthday is there and in the picture your cake is there, you are missing. Will you pay him? You will not pay. Okay, so where are the birthday boys? They are missing. Point number 2. Artists showed how something felt, not exact details. हाँ, अब ये तूने थोड़ी सी काम की बात की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। 1 मिनट, कि तुमने एक
ऐसी बात करी कि आर्टिस्ट शो हाउ समथिंग फेल्ट, नॉट एग्जैक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो अगर तुमको एक, अब एक लड़की का फोटोग्राफ कोई बनाए, पेंटिंग बनाए ऐसे मार मूर के ब्रश वश, तो ये तो पता लग जाएगा लड़की है, बट वो देखने में कैसी है, टेक्सचर कैसा है, वो सब चीजें जो है नहीं होती। तो इट शोज Conceptual समथिंग paint. फेल्ट, नॉट एग्जैक्ट डिटेल नहीं लोगों ने बताई। ठीक है जी, ये पॉइंट हुआ तुम्हारा, एक पॉइंट मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें एक मार्क्स मिल गए। आगे आइए थोड़ा। They use soft light and colors. दे यूज सॉफ्ट लाइट एंड कलर, Color. मतलब उनकी पेंटिंग में शार्प जो लाइट थी, हार्ड लाइट जो थी, स्पेकुलर लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो नहीं थी। ठीक है जी, एंड सॉफ्ट लाइट एंड कलर्स, कलर्स का क्या मतलब हुआ, एक सेकंड का मुझे टाइम दे दो। तो क्या था कि सॉफ्ट लाइट थी, हार्ड लाइट नहीं थी पेंटिंग के अंदर। दे यूज सॉफ्ट लाइट एंड कलर्स। अभी कलर्स वाली बात, सॉफ्ट कलर तो होते नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट कलर नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? नहीं, लेकिन ब्राइट कलर नहीं था, बहुत फ्लैट देखो कलर। देखो 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 देखो, अब तुम सीधा का सीधा ऑब्जेक्टिविटी में आ जाओ। कलर्स का क्या मतलब है, दे यूज सॉफ्ट लाइट, समझ आ गया, एंड कलर्स। तो क्या पेंटिंग बिना कलर के बन जाती है? नहीं, पेंटिंग बिना कलर के बना लोगे? नो नो। तुमने क्या मतलब हुआ इस कलर्स का? इसका कोई मतलब नहीं है। तो दे यूज सॉफ्ट लाइट। डू एंड फ्लैट कलर। एवरीबडी एल्स आल्सो एग्री? जो नहीं एग्री करता है खड़क से उसमें टाइप करो। तुमको ही पता होना चाहिए क्या हो रहा है यहां पर, मैं ही बोलता रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आदमी बोल रहा है कि सॉफ्ट लाइट इस्तेमाल करते थे। बाकी लोगों ने भी असाइनमेंट भरा है तो उनको पता है सॉफ्ट लाइट होती थी या नहीं होती, हाँ या ना? जो लोग इससे एग्री नहीं करते वो फटाक से टाइप करो, और नहीं टाइप कर रहे हो इसका मतलब एग्री कर रहे हो। ठीक है जी। इट लेटर इन्फ्लुएंस फोटोग्राफी एंड फिल्म्स टू। फोटोग्राफी को इन्फ्लुएंस किया कैसे? बंगाली आदमी है, तुझे पता होना चाहिए फोटोग्राफी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। बंगालियों को सबसे ज्यादा पता होता है कि टू नहीं? डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री एब्स्ट्रैक्ट। फोटोग्राफी, और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी क्या होती है एज सच जो है, तो उसमें हार्ड लाइट भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये तो हाँ, सॉफ्ट लाइट की बात हो रही है यहां पर। सुब्रोतो मित्रा shot first feature film of Satyajit Ray. What is यस so important about that? He used the bounce light, यस। he used the soft light. तो सॉफ्ट लाइट से लोग इन्फ्लुएंस हुए, हम्म फिल्म में भी आए। ठीक है हम्म। जी। तो ये 4 पॉइंट में से आपको मार्क्स मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे? 2। दो। 50% मार्क्स वाले को क्या बोला जाता है, सेकंड डिवीजन। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और। हाँ जी, सुजैन खान कौन है? Yes, sir. आइए आइए। इम्प्रेशनिज्म पढ़ना चालू करिए Uh, फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। Impressionism Impressionism focused on capturing the moments of light and atmosphere using quick brushstrokes and light color palette to depict everyday scenes. It एक मिनट एक prioritized मिनट एक मिनट रुक जाओ, इतना भाग क्यों रही हो? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट के तरीके मैंने फॉर्मूला बताया था मास्टर की, क्या है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंप्रेशनिज्म फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द मोमेंट्स ऑफ लाइट। ये मोमेंट्स ऑफ लाइट क्या होता है जी? मोमेंट्स ऑफ लाइट क्या होता है बताइए थोड़ा सा हमको। अब लिख तो दिया है तुमने, कट पेस्ट करके कहीं से, समझ भी आना चाहिए। मोमेंट सर ऑफ वो लाइट क्या होता है? fleeting moments of light जैसे जैस ब्रश जैस स्ट्रोक से नहीं नहीं, मोमेंट ऑफ अ, लाइट की बात कर, ब्रश को भूल जाओ, अभी लाइट की बात कर रहे हैं हम। मोमेंट ऑफ लाइट क्या सर होता है? मोमेंट ऑफ लाइट, अर्ली मॉर्निंग की लाइट अलग होती है, लेट इवनिंग की लाइट अलग होती है, डे लाइट अलग होती है 12 बजे के आसपास। और यही मॉर्निंग डे लाइट, और ये अगर फ्रांस में होगा तो अलग होगी, स्विट्जरलैंड में होगा तो अलग होगी, इंडिया होगा तो अलग होगी, लैटिट्यूड के हिसाब से कहां पे कौन सा कंट्री लोकेटेड है। तो मोमेंट ऑफ लाइट का मतलब है मॉर्निंग है, इवनिंग है, डे है। ठीक है जी। एंड एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर क्या होता है?
outdoor atmosphere environment, वो एग्जैक्टली थोड़ा डिफाइन होना चाहिए कि बीच के ऊपर है, डे लाइट है, स्ट्रीट लाइफ है, किस टाइप का एटमोसफियर है। ठीक है जी। यूजिंग क्विक ब्रश स्ट्रोक एंड लाइट कलर पैलेट, लाइट कलर या लाइटर कलर या पेस्टल कलर्स, एक एक शब्द में खेल होता है। तो ये आप ये कहना चाह रही हैं कि उनके फोटोग्राफ में पेस्टल कलर्स होते थे, ब्राइट कलर्स नहीं होते थे? क्या yes, आप ये kind कहना of चाह रही हैं? soft color palette. देखो वही वाली बात हो रही है, सॉफ्ट और हार्ड। कलर पैलेट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो सॉफ्ट हार्ड की नहीं होती है। ठीक है, तो आप बात करेंगे पेस्टल कलर्स और ब्राइट कलर, करेक्ट और नॉट? तो Yes. एग्जैक्ट टर्म जो है, कॉपी करके चेप दिया उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समझ भी आना चाहिए तुम लिख क्या रहे हो। तुम्हें अगर समझ नहीं आएगा तो भूल भाल जाओगे वहां तक जाते हैं एग्जाम के। ये तो रटा हुआ है, तुमने कल वहां पे चिपका दिया, वहां से 4 जगह से इधर उधर से उठा उठू के। एक आदमी ने तो एक ही जगह से चिपकाया है, सरगम भटनागर ने एक जगह से कॉपी किया और लगा दिया। मैं दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा मैं आपको। और बाकी लोग तो सो रहे हैं, 11 लोग, 11 लोग आराम से चद्दर ओढ़ के आलू का पराठा खा रहे हैं। तो इसमें पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, एक एक चीज का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। It prioritized personal vision and emotion over realistic detail. करेक्ट। रुक This जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो ये क्या चीज बात हुई? प्रायोरिटाइज पर्सनल विजन। पर्सनल विजन का क्या मतलब है? मैं चीजों को कैसे देखता हूं, मैं चीजों को कैसे देखता हूं, दैट इज माई विजन। मुझे लगता है कि एफटीआई एंट्रेंस एग्जाम द पैटर्न चेंज इज नॉट ए करेक्ट वे, while five other people feel that it is correct. Faculty feels it is correct. So it is my perception. Other people may have a different perception. So how do I personal vision? What is my vision? And emotion over realistic details. कि एक एक चीज बारीकी से नहीं है, जो पहले भी किसी ने बोला था पिछली बार भी, कि उसमें रियलिस्टिक डिटेल उसके अंदर नहीं है। तो दोनों बात आ गई इसके अंदर। ठीक है जी, कि एक तो पर्सनल विजन आ गया लोगों का, और जो है उसके अंदर रियलिस्टिक पॉइंट आ गया। हाँ जी, आगे बढ़िए। This artistic shift influenced early world cinema, especially French Impressionist filmmakers, for example, John Epstein, Abel Gance, who adopted visual techniques like soft focus, natural lighting, and innovative editing to express inner emotions and subjective experience on screen. हाँ जी, रुक जाइए अब थोड़ा सा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कितने पॉइंट आप बता रहे हैं वो बातें हैं। सो दिस आर्टिस्टिक शिफ्ट इन्फ्लुएंस्ड अर्ली वर्ल्ड सिनेमा। अर्ली वर्ल्ड सिनेमा का मतलब 30-40s का जो सिनेमा था वो। फ्रेंच इंप्रेशनिस्ट फिल्म मेकर्स, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द फिल्म। तुमने इनकी कोई फिल्म देखी है किसी की कभी? किसी और आदमी ने Sir, देखी है? किसी ने कोई फिल्म देखा है इन लोगों का? sir, there's one film, The Fall of House of Usher. John Correct. Epstein made Edgar Allan's Poe adaptation from the book. देखा है आपने वो फिल्म? तो आप नाम सर बता रहे देखा हैं, नहीं आपने वो फिल्म देखा है या नहीं देखा, ये बताइए। नो सर। देखा नहीं है तो उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप ठीक से लिख पाएंगे। बट क्योंकि 4 मार्क्स का है तो पॉइंट भी अगर आपने लिख दिया तो उसमें भी काम चल जाता है। हु एडॉप्टेड विजुअल टेक्निक्स लाइक सॉफ्ट फोकस, नेचुरल लाइट। 3 शब्द हैं इसके अंदर। सॉफ्ट लाइट आ गई, जो पहले भी किसी ने बात की थी। ठीक है जी। और फोकस, फोकस क्या मतलब हुआ इसका? फोकस वर्ड का यहां पर कोई मतलब, तो आप ये बोल सकते हैं यूज द सॉफ्ट लाइटिंग टेक्निक्स, सॉफ्ट लाइटिंग टेक्निक। और उसके बाद आप ये भी बोल रही हैं नेचुरल लाइटिंग। तो सॉफ्ट लाइटिंग नेचुरल लाइट होती है। तो आप इस तरीके से मेंशन करें कि सॉफ्ट लाइटिंग विच मे बी नेचुरल और मे नॉट बी नेचुरल। ठीक है जी। तो या तो आप बात करो सॉफ्ट टेक्निक की बात करो, या हार्ड लाइट की बात करो। दो ही टाइप की लाइट होती है, स्पेकुलर लाइट या सॉफ्ट लाइट। तो कौन सी लाइट जो है इस्तेमाल हुई है ये आपको क्लियर कट होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा, डीपली उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो उससे आपको नहीं पता लगेगा। आगे क्या है? एंड इनोवेटिव एडिटिंग टू एक्सप्रेस इनर इमोशंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑन ए स्क्रीन। अभी इनोवेटिव एडिटिंग क्या है, उसकी क्या इनोवेटिव एडिटिंग उन्होंने इस्तेमाल की?
अगर आप ये आंसर दे दें और इंटरव्यू बोर्ड में कोई मुझ जैसा आदमी बैठा होगा आपका रिटर्न एग्जाम के बाद, तो आपसे पूछेगा कि क्या लिखा है तुमने। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और आप ऐसे ही वहां पे बताएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे वहां पर, व्हाट इज इनोवेटिव एडिटिंग। तो पता लग गया कि आपने कट पेस्ट करके यहां पर चिपका दिया, समझा वमझा इसको कुछ नहीं। ठीक है जी। गौरव आनंद बोलिए। हाथ उठा रखा था, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़िए थोड़ा सा। ये खत्म हो गया। बात समझ आ रही है आप लोगों को, कहाँ क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, ये बहुत बहुत क्लियर कट तरीके से पता होना चाहिए। तुम पेपर देने जा रहे हो, मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूं, मेरा काम केवल यही बताना है कि आपने ठीक किया या नहीं किया। सानवी व्यास आ जाइए लाइन में। सानवी जी आप हैं या घूमने चली गई? Yes, sir. वेरी गुड। आइए पढ़िए, क्या लिखा है आपने इंप्रेशनिज्म के बारे में। Impressionism is a term that originated in painting that emerged in France. चलो, फ्रांस और पेंटिंग की बात आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन लोग थे वो आपने नहीं बताया। चलिए आगे बढ़िए। Impressionism means to evoke emotions and impressions rather than simply narrate a story. Often use innovative camera editing, work editing, and lighting to convey characters' inner worlds. रुक जाओ, ये तो आपने सिनेमा वाली बात करी अभी, Hmm. ये बात हो रही है पेंटिंग की। ठीक है, तो पहले तो आप पेंटिंग की बात करेंगी। इंप्रेशनिज्म आप सिनेमा के अंदर बात कर रही हैं, पेंटिंग की बात आप एकदम से कूद के पेंटिंग से सिनेमा पे आ गई। Okay. Hmm. इंप्रेशनिज्म मीन्स टू इवोक इमोशंस एंड इंप्रेशन रादर देन सिंपली नरेटिंग ए स्टोरी। स्टोरी कहां सुनाते हैं आप? फिल्म में। Cinema. पेंटिंग में तो स्टोरी नहीं सुना रहे होते आप। सुना रहा है? Hmm. एक फ्रेम होता है उसके अंदर, तो Hmm. आपने फोटोग्राफ खींच लिया, एक फ्रेम आ गया आपके पास पेंटिंग में, तो स्टोरी थोड़ी चल रही है वहां, कहानी थोड़ी चल रही है, कहानी पता लगती है फिल्म में। तो आप जो Hmm. लिख रहे हैं, आप सिनेमा की बात करना चालू कर दिया। Okay. तो आप बताइए कि सिनेमा में कैसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको इम्बाइब किया। तो पता ही नहीं लग रहा है मुझे सिनेमा की बात कर रही हो, पेंटिंग की बात कर रही हो। तो जब मैंने देखा स्टोरी, इनोवेटिव कैमरा वर्क, लाइटिंग, क्या होता है इनोवेटिव कैमरा पर थोड़ा बताओ, क्या था उसमें Innovative इनोवेशन? lightings को यूज के करना, अंदर क्या इनोवेशन था? लाइटिंग टोन को यूज करना, कोई स्पेसिफिक टोन को यूज करना, लाइटिंग और टोन दो अलग अलग चीजें होती हैं। लाइटिंग टाइप, टाइप। हार्ड सॉफ्ट, टोन तो हमने एंसल एटम के अंदर पढ़ा था, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे टोन्स। तो क्या इनोवेटिव था इसके अंदर? इनोवेटिव कैमरा वर्क के अंदर क्या था इनोवेशन, वो आपको नहीं पता। ठीक है जी। एडिटिंग में क्या इनोवेशन था? जॉन गोदार्ड का एक फिल्म है ब्रेथलेस, नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है। शोरोदीप दादा, ब्रेथलेस का नाम सुना है आपने? यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. क्या इनोवेटिव टेक्निक है एडिटिंग की उसमें? Sir, he used jump cuts वेरी गुड। techniques in तो the जंप कट का टेक्निक जो है ब्रेथलेस के अंदर इस्तेमाल किया गया, तो इनोवेटिव हो गया। उससे पहले नहीं होता था जंप कट इस्तेमाल। ठीक है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू स्पेसिफाई। देखो ये जो लेमैन्स लैंग्वेज है, वेरी गुड लाइटिंग, वेरी गुड कंपोजिशन, वेरी नाइस लाइट, ये सब लेमैन्स लैंग्वेज। तुम लोग लेमैन नहीं हो, तुम लोग क्या बनने वाले हो? सिनेमाटोग्राफर। बनोगे या नहीं बनोगे अलग बात है, बट बनने का सोच रहे हो, करेक्ट? तो लेमैन्स की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल। ठीक है जी, आगे बढ़िए। It focuses on light, color, and composition to evoke feelings and atmosphere, mirroring the artistic principles of Impressionism in painting. अब रुक जाओ। इट फोकसेस ऑन लाइट, कलर्स एंड कंपोजिशन। ये तो, ये तीन चीजें तो हर जगह होती है, हर पेंटिंग में होता कि नहीं होता है? कलर भी होता है पेंटिंग में, कंपोजिशन भी होता है, लाइटिंग भी होती है। करवाजियो का नाम सुना तुमने कभी? किसी आदमी ने करवाजियो का नाम सुना हो? Yes, sir. बोलिए क्या खास बात है उसकी फोटोग्राफ, उसकी पेंटिंग में? Sir, he used एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। high contrast techniques with soft color palettes नो, and the first part is correct, he used the high contrast. He has a source lighting in his painting. कहां से लाइट आ रही है और कहां गिर रही है,
करावाजो की पेंटिंग में आपको पकड़ में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करावाजो की पेंटिंग में क्या है, ही इज अ मास्टर ऑफ सोर्स लाइट। इतनी क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। तो ये जो आपने बात लिखी है, ये कहाँ पे फोकस इज लाइट कलर कंपोजिशन, तो हर एक जगह होता है तो हर जगह होता है, हर कहाँ नहीं होता है, कौन सी पेंटिंग में नहीं होता है। इवोक फीलिंग्स एंड एटमॉस्फियर मिररिंग द आर्टिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ इंप्रेशन। आर्टिस्टिक प्रिंसिपल क्या है वो बताइए आप मुझे। इंप्रेशन, मेरा इंटरेस्ट आर्टिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर है, वो कौन से हैं वो बताओ। स्पेसिफिक आर्टिस्ट का नहीं, जो किसी का भी बता दो, किसी का भी बता दो भाई। सब एक ग्रुप है, सब लोग एक ही चीज में बिलीव करते होंगे ना। सर वो एक पेंटिंग देखा था, मैं नाम भूल गई आर्टिस्ट का, बस वो उसमें बात बार खत्म और हुई, फिर वो। तुम्हें पेंटिंग देखा था नाम भूल गए, सब कोई कुछ भी अरे बोलेगा नहीं हो। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरलाइन। जनरल तरीके से आप बात नहीं कर सकते। यस सर। ओके, ठीक है जी। इन फिल्म मेकिंग इट emphasizing सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, विजुअल एस्थेटिक एंड इमोशनल डेप्थ। अब ये जो वर्ड है विजुअल एस्थेटिक हर जगह होता है, हम्म इमोशनल डेप्थ हर जगह होती है हम्म, ठीक है जी। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि गोदार्द की फिल्म जो है, जो 60s का न्यू वेव सिनेमा है फ्रांस का, उसके अंदर एयूटर थ्योरी चालू हुआ कि जिस सब्जेक्ट में मैं बिलीव करता हूं मैं वही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि सब स्क्रिप्ट लिखी तुमने और शोरोदीप दास डायरेक्ट कर रहा है उसको ऐसा थोड़ी हो सकता है। हॉलीवुड में तो ऐसे ही होता है, कोई स्क्रिप्ट और लिखता है, डायरेक्ट कोई और करता है। तो आई हैव टू फील फॉर द सब्जेक्ट, इट हैज टू बी माई पर्सनल एक्सपीरियंस और समथिंग विच विल अपील टू मी। तो इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हर आदमी को समझनी चाहिए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। और कौन सी जनता है इधर उधर? हाँ जी, सरगम भटनागर जी आ जाइए। अगर आप घूमने नहीं गई हैं तो आ जाइए। सर यस एक सर। वेरी गुड, खोलो अपना कैमरा, दिखाओ कहाँ हो। हाँ जी, चलिए बोलिए, पढ़िए क्या लिखा है आपने। अब देखो, ऐसे वहां पर जब आप इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो वहां पे अंडरलाइन होता है आर्टिकल के अंदर, वो वहां से लिंक होता है किसी दूसरी जगह का। नहीं 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 सर, ये मैंने किया अंडरलाइन अपने आप, एक एक चीज। अब मैं प्रूव करता हूं नहीं किया। ये देखिए फोटो, मैंने वो टेक्स्ट वहां पे डाला, ठीक है, और ये यहां पे पकड़ में आ गया कि आपने कहां से कॉपी किया। सर ये मैं मैंने तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। सर ये सब मैंने, ये क्वेश्चंस जो है ये उस पहले वेबसाइट 2020। पे गई, फिर एक वेबसाइट बनाई वहां से नहीं 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 सर, ये क्वेश्चंस चलो मैंने कोई नहीं। पहले एक्चुअली कर चुकी हूँ मैं, तो चलो मैंने कर चुकी वही हो तो बहुत आंसर अच्छी दिया। बात है। अब जल्दी से पढ़ के बताओ, देखते हैं क्या लिखा है, लिखिए बोलिए। इंप्रेशनिज्म ए पार्ट ये रहा। मैंने शॉर्ट नोट, इम्प्रेशनिज्म। आपने इंप्रेशनिज्म पे नहीं लिखा? नहीं। अच्छा, चलो फिर किसी और आदमी ने इंप्रेशन, पहले एक एक चीज को हम ले लेते हैं। चलो किसी और चीज को ले लेते हैं हम। दादा साहब फाल्के, डी को पकड़ते हैं, चलो ठीक है जी। दादा साहब फाल्के, या डी से कुछ और लेते हैं, कोई और अच्छा लेते हैं। यूज ऑफ पर्सपेक्टिव इन फोटोग्राफी, चलिए इसको पढ़िए आप। Perspective in photography means showing depth, how near or far things look in a photo. It changes based on where the camera is placed अब and what. सबसे बड़ी बात क्या है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे आप, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। 4 पॉइंट का मतलब है 4 पॉइंट, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो दूसरे आदमी को समझ आएगा कि आपको क्लैरिटी है। तो पर्सपेक्टिव की आपने डेफिनेशन बता दी। पर्सपेक्टिव इन फोटोग्राफी मींस शोइंग डेप्थ, हाउ नियर और फार थिंग्स लुक इन ए फोटो। हाँ जी, दूसरी बात पढ़िए। It change it changes based on where the camera is placed and what lens is used. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 हो गया। आगे। Using lines, angles, or placing one object in front of another can make the photo look more real and three-dimensional. ठीक है जी। Uh,
In cinematography, this helps show space and connection between characters or objects clearly. अब क्या चीज इसमें गायब है? आपने कोई लेंस की बात नहीं करी कि किस लेंस के अंदर हम पर्सपेक्टिव ठीक से पकड़ सकते हैं। अगर मैं आपको 4 लेंस दूं, 24 mm, 50 mm, 85 और 100 mm, so to create a perspective, which lens you will use? To create a perspective, sir. पर्सपेक्टिव की बात हो रही है ना, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो लेंस भी तो लगेगा ना फोटोग्राफ में पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, कि बिना लेंस हाँ, बन जाएगा? नहीं। हाँ, तो बताओ कौन सा लेंस लगाओगी? सर वापस लेंस कौन से थे? द लीस्ट नंबर, जो सबसे छोटा वाला नंबर आपने क्या है बोला। ये, छोटा बड़ा ऐसे कुछ नहीं होता है। फोटोग्राफी में फोकल लेंथ होती है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? सरगम। चारू का नाम क्या है? चारू। शोरोदीप का नाम क्या है? शोरोदीप। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, अरे ये लड़का जो है, जो चश्मे वाला जो है, क्या ये गले में डाल के बैठा हुआ है, ये क्या नाम है रे? अरे ऐसे नहीं बोल सकते, आपको नाम बताना पड़ेगा। आप एमएम की बात करेंगे, आप कौन कौन से लेंस होते हैं आप बताइए। चलो आप लेंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से, कोई फोकल लेंथ बोलो जो मार्केट में अवेलेबल होती है लेंस की। अगर तुम्हें वाइड एंगल लेंस खरीदने जाना है तो कौन सी फोकल लेंथ बोलोगी दुकान पे जाके? तुम बोलो भैया 24। एक लेंस दे दो जरा, जरा जो नहीं, वाला होता है, जो थोड़ा देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बोलोगी? क्या बोलोगी वहां? 24 mm या 24 mm बोलोगी, और क्या बोलोगी? आ, और कौन कौन से होते हैं वाइड एंगल लेंस? 35, और 18। करेक्ट, 18, 24, 35, 32, कोई भी लेंस जो 50 mm से नीचे है वाइड एंगल। तो आपने यहां पर वाइड एंगल लेंस के बारे में नहीं बताया, पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पर्सपेक्टिव के अंदर? वाइड एंगल लेंस। खेल जो है वाइड एंगल लेंस का है, पहली चीज। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? पर्सपेक्टिव कितने टाइप का है? आपने बताया कितने टाइप का पर्सपेक्टिव है? कितने टाइप का पर्सपेक्टिव? फॉल्स पर्सपेक्टिव होता है एक तो। कल मैंने बोला था इसलिए तुम्हें याद आ गया, तुम्हें पता थोड़ी है फॉल्स पर्सपेक्टिव क्या होता है। नहीं नहीं सर, आपने क्वेश्चन भेजा था मुझे फॉल्स पर्सपेक्टिव का, चलो तो वो बोला होगा मैंने। इसलिए तुम्हें याद है, चलो कोई बात नहीं। एक फॉल्स पर्सपेक्टिव हो गया, एक पर्सपेक्टिव, एक टाइप का आपको पता लग गया क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन भेजा। अब आप मुझे बताइए और कौन कौन से हो? आ, कोई बात। तो जब तक आप किसी चीज पे मेहनत नहीं करेंगे तो आप इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, थोड़ा ऊपर देखेंगे, थोड़ा नीचे देखेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, तो इनसे जो है आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज को ठीक से समझा नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एरियल पर्सपेक्टिव। देयर इज समथिंग कॉल्ड एरियल पर्सपेक्टिव। तो आपने तो बताया नहीं एरियल पर्सपेक्टिव होता है, फॉल्स पर्सपेक्टिव होता है। कहां लिखा हुआ है इसके अंदर? मुझे तो नहीं दिख रहा। वहां पर कंप्यूटर चेक नहीं करेगा इस पेपर को इस पेपर को आदमी चेक करेगा कोई, और आदमी कोई मेरा ही छोटा भाई, बड़ा भाई होगा वहां पर। ठीक है। और उनका तो काम धंधा ही है पढ़ाना, तो उनको तो एक एक चीज पता होती है। ठीक है। तो आप फंस जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। हाँ जी, और देखते हैं कोई और बच्चा इधर उधर कोई दिख जाए। चलिए, ये हो गया। आप ऊपर जा रहे हैं हम लोग फिर दोबारा से। बाकी की जनता वापस आ जाओ। चारू मरमम, मरूम, मरूम, चारू तुम्हारा पूरा नाम क्या है? चारू मारूम सर। मरूम, चलो। नाउ आई एम क्वाइट क्लोज। तो Okay, sir. पर्सपेक्टिव की बात करते हैं आपकी भी। आप पढ़ो पर्सपेक्टिव में क्या क्या लिखा हुआ है। Okay, sir. The first one is forced perspective. Is a play. फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। सरगम समझ आया फोर्स्ड पर्सपेक्टिव क्या होता है? पहले तो वर्ड पता लग, इसने भी कॉपी पेस्ट किया है, अभी पता लग जाएगा कितना किया है। हाँ जी, बताइए फोर्स्ड पर्सपेक्टिव क्या होता है? Sir, perspective is a playful optical illusion that manipulates scale and distance by positioning subject strategically to make them appear larger, smaller, closer, and farther away. करेक्ट। तो क्या हम इसको, चारू, क्या हम इसको फॉल्स पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, फोर्स पर्सपेक्टिव की जगह? तुमने पढ़ा है, तुमने ही लिखा Yes, है। sir. Yes, sir. तो फॉल्स पर्सपेक्टिव क्या हुआ? कि जो पर्सपेक्टिव एक्चुअली है तो नहीं,
बट Yes, आप उसको manipulate, sir. शो करो, आप उसको शो करो। तो सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, आपने हाथ से ऐसे ताजमहल पकड़ा हुआ है Yes, sir. फोटो में, आप पकड़ सकते हो ताजमहल हाथ से? No, sir. फिर तो दिख रहा है फोटो में, हाथ हाथ से पकड़ा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा ताजमहल तुमने हाथ में पकड़ लिया। सन, कितना लंबा चौड़ा सन होता है, उसको आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो दैट इज ऑल कॉल्ड फॉल्स पर्सपेक्टिव और फोर्स पर्सपेक्टिव। फोर्स पर्सपेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? फॉल्स पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, ये सब शब्द याद रहेंगे जो तुमने यहाँ लिख दिए हैं, कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है यहाँ पर, ये याद रहेगा तुम्हें वहां तक एग्जाम में। No, sir, but sir, I understood. Like, I You understood. understood, but my question is, will you remember them? Understanding is something else, but will you remember these words to write down in examination? That is my question. No, sir, not No. like. So write in a language which you will remember till the examination date. हाँ, उसके बाद भूल जाओ, कोई बात नहीं, Okay, sir. एग्जाम तक याद रखो, उसके बाद भूल सकते हो। ठीक है, चलो। आज से 30 साल पहले मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड की डेफिनेशन याद की, क्या? कि जोन ऑफ शार्पनेस विद इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेप्टेबली शार्प। मुझे आज भी याद है, एग्जाम में भी याद थी, 30 साल बाद भी याद है, 30 साल पहले भी याद थी। सो समथिंग विच यू रिमेंबर, ट्राई टू यूज दैट लैंग्वेज रादर देन दीज heavy duty words which you will forget in the examination. Next, 1 2 क्या है ये? 3-point perspective, sir. 1 2 and 3 point perspective uses 1 2 or 3 vanishing points to craft different spatial effects. जैसे Like a road receding. roads or road, Roads receding. any road, it can be any road. Okay, roads receding into distance, Yes. buildings viewed at an angle, or towering skyscraper shot from below. These are good answers, but provided you remember in the examination also. और यहां पर अगर फोटो भी लगाते तो अच्छा लगता, मुझे पता लगता कि तुम्हें समझ भी आया कुछ। तो तुमने कॉपी पेस्ट किया है, वो तो इतना तो समझ आ रहा है मुझे, बट अगर इन चीजों के जो लिखा हुआ है तुमने, अगर इनके फोटो भी ढूंढ के इंटरनेट से यहाँ लगाते, लगा सकते थे या Yes. नहीं? अभी तो एग्जाम में थोड़ी बैठे हो, एग्जाम में नहीं लगा सकते हो, बट यहां तो लगा सकते हो। So had you put the photograph here, I would have understood that you also understand. Okay? आगे आइए, अब अच्छा वर्ड आया, लीनियर पर्सपेक्टिव। Yes. Uses converging lines and vanishing points, जो आपने ऊपर बताया उसी का आप थोड़ा सा आगे बता रहे हैं इसको। टू एड डेप्थ कॉमनली सीन विद रोड्स बिल्डिंग एंड रेलवे, उसी चीज को थोड़ा सा आपने घुमा फिरा के कर दिया है, बट वो जो आप बात कर रहे थे वो पहले लीनियर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, आपने उसको रिपीट किया है यहाँ पे आके। ठीक है जी, तो आपने 2 बातें बताई इसके अंदर बस। 4 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए तुम्हें? Sir. हैं? 4 out of 4, sir. 4 out of 4, but here you will get 2 because you told me 2 things. Third thing is, to create a perspective you need the wide angle lens. 4, there is something called aerial perspective, जिसकी हमने कोई बात ही नहीं की अभी तक। वो कहाँ है, कौन लिखेगा उसको? पड़ोसी लिखेगा तुम्हारा, पड़ोसी लिखेगा तो पड़ोसी को मार्क्स मिलेंगे, तुम लिखोगे तुमको मिलेंगे, क्या नहीं? तो तुम्हारे 2 चीजें गायब हैं, एक ही चीज को तुमने दोबारा से घुमा फिरा के, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. गोल मटोल तरीके से उसी बात को घुमा फिरा के कहना, इट्स कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश। सो डोंट बीट अराउंड द बुश। Push. 2 + 2 = 4, सिंपल। नॉट a multiplied by b divided by c under root this equal to d, ये सब नहीं। ठीक है जी, फोर्स पर्सपेक्टिव। आप नेक्स्ट आदमी आ जाओ जरा जल्दी से, इसी में चल रहा है तुम्हारा ये सब। Yes, sir. ओके, हाँ जी, डिस्टॉर्टेड पढ़िए क्या लिखा है। Sir, distorted curvilinear कर्वीलीनियर, curvilinear and रोड का कर्व होता है, कर्व से बना है कर्वीलीनियर। ओके, yes, sir. And atmospheric perspective involves using wide angle fisheye lens. हाँ लिखा तो है तुमने वाइड एंगल, समझ नहीं आया तुम्हें बट लिख दिया है।
wide angle and fish eye lenses to bend lines for dramatic effect and leveraging haze and overlapping objects to convey distance and mood. ये haze क्या होता है? हेज क्या है? एरियल पर्सपेक्टिव। तो तुमको अगर तुमने ठीक से अगर समझा होता तो इसको पॉइंटर वाले फॉर्म में लिखते। हेज, हेज का मतलब एरियल पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा लिखते। Vanishing point is where these parallel line meets on a horizon even before or below in a 3-point perspective। वही उसी चीज को तुमने घुमा फिरा के यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव ए पॉइंट, सो यू हैव टू मेंशन द पॉइंट। ये जो वाइड एंगल वाला जो है ये पॉइंट है, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड जो लिख रहे हो ये पॉइंट है तुम्हारे पास। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया, चौथा पॉइंट तुम्हारा मिसिंग है। तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। चलो आइए आप नेक्स्ट। तो बात समझ आ रही है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? चलो एक क्वेश्चन और पढ़ डालते हैं किसी और का, तुम्हारा नहीं पढ़ते वरना तुमको लगेगा तो मैं फेवर कर रहा हूं। गौरव आनंद, Yes, वापस आ गए sir. घूम के? Hello, sir. Hello. ओके, दादा साहब फाल्के बता दो, पढ़ो। Sir, Dada Saheb Phalke is known as father of Indian cinema. वेरी He गुड। made India's first full-length feature film, Raja Harishchandra, in 1913. His work started the Indian film industry and inspired many filmmakers. ये बकवास है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। Yes, sir. तो बीटिंग अराउंड द बुश, पहले सुन लो, पहले असली चीज को समझो, पहले जीवन में पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट की बात करो। दादा साहब फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, समझ आ गया। ही मेड इंडिया फुल फीचर फिल्म राजा, ये भी समझ आ गया, ठीक है जी। हिज वर्क स्टार्टेड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड इंस्पायर्ड फिल्म मेकर, ये बीटिंग अराउंड द बुश। तो जो फिल्म मेकर पायनियर होगा वो तो इंस्पायर करेगा ही लोगों को, इसमें कौन सी बड़ी Yes. बात बता रहे हो तुम? हिज वर्क स्टार्टेड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और तुम पहले बोल रहे हो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा वही होगा जिसने चालू किया होगा। तो वाजपेयी को बोलोगे तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, No, sir. ठीक है। तो ये जो है ये गड़बड़ है तुम्हारी, बात समझ आ रही है? Yes, sir. आगे, टुडे द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन टू ऑनर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ये पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा पॉइंट है, बट ये पॉइंट आधा है पूरा नहीं है। क्यों? तुमने बताया ही नहीं आज तक किसी को मिला है। पहला, अब मैं पूछ लेता हूं, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? सर देविका रानी। इससे पूछ रहा हूँ, गौरव आनंद से पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं पूछता देविका रानी। हाँ Sir, जी। don't remember. वो क्यों नहीं पता तुम्हें? कि तुमने एमसीक्यू नाम की एक किताब है जो नरेश शर्मा ने लिखी है किसी जमाने में, अब वो छपनी बंद हो गई है, उसको हमने ऑनलाइन बना रखा है। उसमें दादा साहब फाल्के के ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे हुए, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं तो तुम्हें पता नहीं तो फेल हो जाओगे। फेल कौन होगा? तुम। मुझे कोई फर्क पड़ता है? मेरे तो पूरे पैसे आ गए, ठीक है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप 4 दादा साहब फाल्के अवार्ड को चालू करते हैं कि इट स्टार्टेड विद सो एंड सो, लास्ट ईयर इट्स 5-6 नाम भी डाल दोगे उधर से कुछ तो पूरा खेल हो गया। तो इसमें इसके मार्क्स कितने हुए इस क्वेश्चन के? जो आपने लिखा है 2.5, पहला फिल्म, और इसमें भी केवल आपने इसको पूरा करते, ही मेड इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र एंड आफ्टर दैट ही मेड दिस कार्यामर्दन फलाना ढिमका, जो भी कुछ बनाया उसमें। तो 4 नाम और लिख देते तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता। एक्चुअली इसमें मिलने चाहिए तुम्हें 2 मार्क्स। 50% मार्क्स वालों को क्या बोलते हैं? सेकंड डिवीजन, करेक्ट। सेकंड डिवीजन वाले को किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है? नहीं मिलता। तुम्हें मिलना चाहिए एफटीआई में एडमिशन अगर तुम ऐसा लिख के आओगे। आंसर क्या? कितने मार्क्स मिलेंगे तुमको? 2, ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट और है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन जनता बैठी हुई है यहाँ पर? व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? चलो तुमसे ही बात करते हैं, चलो कॉन्ट्रास्ट को पढ़ना चालू करो। So I will. हाँ, तुम्हारा ही है? Yes, sir. ओके। So contrast in photography and films refers to the difference between the light and the dark areas in an image. It helps to define the shapes, textures, and depth by showing how bright or dark different parts of the scene are. High contrast means there is a big difference between the light and the dark parts. रुको। पैरा नंबर 2, अभी आप हाई कंट्रास्ट और लो कंट्रास्ट की बात पे आ गए, ठीक है Yes, जी। sir. आपने पहले कंट्रास्ट को डिफाइन किया, अब आप छोटा सा पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए।
High contrast means there's a big difference between the light and dark parts, while low contrast means the tones are more similar and closer together. In visual storytelling, contrast plays a key अब role in. रुक जाओ। अगर तुमने एंसल एडम ध्यान से सुना था, जो मैंने पढ़ाया था आपको जोन सिस्टम, तो यहाँ पे थोड़ी सी जोन सिस्टम की बात कर सकते थे आप, Okay. कर सकते थे Yes, कि sir. अगर हाई कॉन्ट्रास्ट सीन होगा तो उसमें क्या होगा, जोन 5 के इधर और जोन 5 के उधर, 0 मतलब पिच ब्लैक, 1 मतलब Gray. ब्राइटेस्ट वन। तो आप जब अगर बात कर रहे हो हाई कॉन्ट्रास्ट की, तो यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट द जोन सिस्टम इन ए डिफरेंट वे। Yes. चलिए आगे। In visual storytelling, contrast plays a key role in setting the mood and drawing attention to certain elements. Correct. High contrast can create a bold, dramatic, or intense feeling. It often makes characters or subjects stand out more and is commonly used in thrillers, action scenes, or black and white films. On the other hand, low contrast gives a softer, more subtle look. It's often used in romantic scenes, dream sequences, or to show calm and peaceful moments. करेक्ट, ये ठीक है। Uh, Contrast can also help guide the viewer's eye. For example, if the background is dark and the subject is brightly lit, the viewer will naturally focus on the subject. Filmmakers and photographers use lighting, color, and shadows to control contrast and create the visual style they want. हाँ, तो अभी कॉन्ट्रास्ट की जो बात हो रही है, अभी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने ठीक से नहीं लिखी। वो क्या, कि कॉन्ट्रास्ट जो होता है, पूरी की पूरी मेरी एक स्लाइड है, एक पूरा का पूरा लेक्चर है इसी शब्द के ऊपर जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। मैंने एक जो आपको पहले वीडियो लेक्चर की लिस्ट भेजी हुई है, उसके अंदर मेरे लेक्चर केवल 4 या 5 हैं, उसमें रिदम, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीजों के ऊपर है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट कलर के अंदर भी होता है। Okay. कलर का भी कॉन्ट्रास्ट होता है, तो आप उस चीज को थोड़ा तरीके से बताइए। कंट्रास्ट कैन हेल्प गाइड द व्यूअर्स आई, वो तो समझ आ गया। फॉर एग्जांपल इफ द बैकग्राउंड इज डार्क, ये सब समझ आ गया, ठीक है जी। फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर्स यूज लाइटिंग, कलर एंड शेडोज टू कंट्रोल कंट्रास्ट एंड क्रिएट ए विजुअल स्टाइल दे वांट। अब आप आ रहे हैं इन कलर इमेजेस, contrast does not only refer, 5 मिनट रह गए हैं, in color images contrast does not only refer to light and dark but also to difference between colors. Strong color contrast like red against the green or blue against the yellow can make certain part of the image pop. Pop art, image pop का मतलब कई बार कंफ्यूज हो सकता है, तो थोड़ा इसको ठीक से लिखना चाहिए। Yes, sir. Low color contrast creates a more blended, gentle look. Overall, contrast affects how emotional, sharp, or soft a scene appears. It helps tell the story not just through the words and action, but through the way the images feel to the viewer. Proper use of contrast can turn a simple shot into something striking and memorable. ठीक है जी। इससे ऊपर जो आपने लिखा हुआ है, ये फ्लारी लैंग्वेज है, लास्ट का सेंटेंस वही लिख रहे हो आप जो ऊपर लिख रहे हो। Overall contrast affect how emotional, sharp or soft a scene appear. इसी बात को रिपीट कर रहे हो यहाँ पे। It Yes, helps tell the story not just through the word. ये सब बकवास है, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं है बेटा, ठीक है, ये सब हटाओ। तो काम की बात होनी चाहिए क्लियर कट तरीके से। ओवरऑल कंट्रास्ट अफेक्ट हाउ इमोशनल, शार्प और सॉफ्ट ए सीन अपीयर्स. Proper use of contrast can turn a simple shot into something striking and memorable. That's it. Okay, sir. हाँ, लिखा है ये। अगर तुम्हें ये सब वहां तक याद रहे, एग्जामिनेशन डेट तक याद होना बहुत जरूरी है। जो तुमने यहाँ लिख दिया है वो तो मुझे पता है कैसे लिखा है, तुमको भी, ठीक है, और वहां कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और कोई बालक? सौरभदीप चंद्रदास तुम्हारा हो चुका है, और कुछ देखें थोड़ा सा। हाँ चलो, 5 मिनट है, जल्दी से कुछ कर लेते हैं, बोलो। लार्ज फॉर्मेट सिनेमाटोग्राफी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज फॉर्मेट सिनेमाटोग्राफी। दोबारा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का, लार्ज फॉर्मेट। अभी एरी ने लार्ज फॉर्मेट कैमरा निकाला था, तो लार्ज फॉर्मेट के बारे में पूछा जा सकता है। सिनेमाटोग्राफी हो रही है, स्टिल फोटोग्राफी नहीं हो रही है, ध्यान रखना। चलिए बोलिए। Large format cinematography is a style of shooting movies
shooting movies using cameras with bigger sensors or film. These cameras give very high quality images and are ये often अच्छा वर्ड है, बिगर सेंसर और फिल्म, क्योंकि फिल्म भी है लार्ज फॉर्मेट के अंदर, लोग फिल्म पे भी शूट करते हैं, क्रिस्टोफर नोलान जैसे लोग। IMAX. IMAX, करेक्ट। These cameras give very high quality images and are often used in big budget or epic films. ठीक है। So, इसका point है, large format uses bigger films or sensor films that than regular 35 mm. करेक्ट। तो This कितना होता है उसका साइज? 35 mm. 35, रेगुलर 35 के लिए उसका साइज क्या होता है, सेंसर साइज? या वो तो आपने बताया नहीं अभी तक, हो सकता है आगे कहीं बताया हो, बट अभी तक तो मुझे नहीं पता लगा। तो यहीं पकड़ लो उसको। आपने जो लिखा यूज बिगर फिल्म और सेंसर साइज, तो बताओ साइज क्या होता है फिल्म का और सेंसर का साइज क्या होता है लार्ज फॉर्मेट के अंदर? आप यहीं बता दो अभी मुझे, ठीक है? घर पे जाके लिखना, ढूंढना। आगे बढ़िए। मैं This तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जामिनर 2 सेकंड में पकड़ लेगा। 2 सेकंड लगेगा उसको। the size of the film. आगे बोलिए। This gives more detail, better sharpness, and smoother images. ठीक है। It creates a shallow depth of field. Background तो looks soft and हमने आज bright. डिस्कस किया, Hmm. आज हमने शुरुआत में डिस्कस किया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्यों होती है उसके अंदर। Hmm. ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपने लिख दिया, चलो अच्छी बात है। इट क्रिएट ए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, बैकग्राउंड लुक सॉफ्ट एंड ब्लरी। ठीक है, आगे बढ़िए। It makes the main subject stand out clearly उसी because का of आपने the डेप्थ ऑफ फील्ड को ही थोड़ा सा depth of एक्सप्लेन field कर size. दिया। It gives a grand and cinematic feeling to the film. These cameras ये are big. बेसिकली लिटरेरी शब्द है, ग्रैंड एंड सिनेमैटिक फीलिंग, बट कोई बात नहीं, चलो पॉइंट, मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। चलो आगे बोलो। These cameras are big and heavy, so they are harder to use. जरूरी है लार्ज फॉर्मेट कैमरा बिग और हैवी होगा। एरी में लार्ज फॉर्मेट आता है, हाँ, मालूम है कौन सा वाला मॉडल है वो? नहीं, पता करो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे बताते तो आपको पता लगता कि जरूरी नहीं है हैवी हो कैमरा, लार्ज फॉर्मेट कैमरा जरूरी नहीं है हैवी हो। एरी का जो मॉडल है एक पर्टिकुलर, क्या नाम है उसका, कौन आदमी बताएगा एरी के मॉडल का? एरी का लार्ज फॉर्मेट कैमरा जो है कौन से वाला मॉडल है? सर एरी 65। एरी 65 और सर एरी एलेक्सा मिलेंगे कल। मिनी एलएफ। हाँ जी, एलेक्सा मिनी एलएफ। एलेक्सा बेटा एरी का एलेक्सा जो है ब्रांड नेम है। एलेक्सा जो है ब्रांड नेम है, जैसे एफटीआई क्या है ब्रांड नेम है, आफ्ट जो है ब्रांड नेम है, क्राफ्ट जो है ब्रांड नेम है, एसआरएफटीआई ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है। तो एलेक्सा मींस ब्रांड नेम है उसका। एरी का एलेक्सा इज सीरीज, एलेक्सा 4, एलेक्सा में अलग अलग मॉडल है, तो उसके अंदर मॉडल कौन सा है? ठीक है सर मिनी एलएफ, मिनी लार्ज फॉर्मेट, मिनी एलएफ। एरी एलएफ एक मॉडल है उसका। ठीक है, तो आप जब तक मेंशन नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। आगे बोलिए। They also cost more money, so usually used in big films. Digital cameras like ARRI, Alexa LF, and Red Monster. हाँ, अब यहाँ पे तूने लिखा है एरी एलेक्सा एलएफ। ठीक है, लार्ज फॉर्मेट कैमरा मॉडल्स लाइक ये एंड रेड का मॉन्स्ट्रो are used today for large format. The quality stays good even if the image ये is एक पॉइंट है, तुमने एक पर्टिकुलर ब्रांड के, 2 ब्रांड के पर्टिकुलर मॉडल की बात की है। आगे बोलिए। The quality stays good even if the image is cropped or zoomed later. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी जब आप स्पेशल इफेक्ट्स कर रहे होते हैं तब आपको ये चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपने उसमें कुछ इमेज का पार्ट लेके उसमें जूम इन करना है, स्पेशल इफेक्ट करना है, तो अगर आपका लार्ज फॉर्मेट साइज है तो उसके अंदर थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं काम इजीली, उसमें इमेज ग्रेनी नहीं होता। आगे बोलिए। It also works well in low light scenes and gives more color detail. It also work well in a low light scenes and give more color details. तो थोड़ा सा अगर इसको टेक्निकली अगर आप बता पाओ कि भाई इसका लैटिट्यूड, जो हमने एक्सपोजर लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो लार्ज फॉर्मेट के अंदर अभी तक पढ़ाया नहीं आप लोगों को, बट क्या है कि मैं बहुत सी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ठीक है, सारे वीडियो इतने सारे दे रखे हैं, आप कब सब्सक्राइब है मुझे पता नहीं,
बट आप डेली अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा. तो इन शॉर्ट, लार्ज फॉर्मेट सिनेमेटोग्राफी इज यूज व्हेन फिल्म मेकर वांट टू ब्ला 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 ब्ला. इंडियन नाम बता दो 2-3 जो लार्ज फॉर्मेट पे चालू हुए हो. इंडिया की पहली फिल्म कौन सी जो लार्ज फॉर्मेट पे शूट हुई है? शोले. वाइट गुम्बा. हाँ जी, शोले सर. बोले 35 निगेटिव है, डिजिटल की बात हो रही. ओके. तो अगर आप 2 फिल्मों के नाम लिखते तो मुझे लगता कि ब्रह्मज्ञानी आदमी है कोई, इसको तो एफटीआई जरूर आना चाहिए. क्या नहीं? तुमने तो नहीं लिखा, नहीं लिखा ना? हाँ. तो ऐसी चीजें जो और लोग नहीं लिखी, तो तुम लिखोगे. तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, बाकी लोग ज्ञानी हैं, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड करता है. ठीक है? ब्रह्म ज्ञान किसके पास है वो आओ. ज्ञानी लोग जो हैं वो बाहर बैठे हो. ठीक है? तो फिर भी अच्छा लिखा है, पॉइंट है, बट इसमें और भी पॉइंट हो सकते थे. वो कल जो बचा कुचा है कुछ लोगों का और देखेंगे हम लोग. तो पॉइंट ये नहीं है कि आप जो है जब आप खुद ढूंढते हैं इंटरनेट पे इधर उधर या जो भी कुछ करते हैं तो उसमें थोड़ा हाथ हिलाना पड़ता है, थोड़ी खोपड़ी हिलती है, थोड़ा कट पेस्ट करते हो उसके अंदर, थोड़ा आपका जो है एक्शन जो है चालू हो जाता है. और जो लोग एक्शन में बिलीव नहीं करते हैं, केवल रिएक्शन में बिलीव करते हैं, ABCD टाइप कर दिया यहाँ पे बस, उसके बाद समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, 3 लोग सी बोल रहे हैं तो सी टाइप कर देते हैं लोग, किसी ने डी बोलना चालू किया ऊपर से तो फिर डी 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 चालू हो जाता है. समझ आना जरूरी है. वहां पर कोई चैट बॉक्स नहीं होगा और कोई नरेश शर्मा नहीं होगा. ठीक है जी? सो आई विश दैट पीपल हु आर स्लीपिंग विल वेक अप समडे सून. Otherwise, the wake-up call will happen next year, and next year means 365 days, which means you would not like to waste until unless you are 19-year-old, like one of the student. She still have a 4 years. ठीक है जी? बट बाकी लोग जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उन लोगों के पास टाइम कम है. गाड़ी मूछ वाले जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बात होती. मैं जब गया था FTI तो आई वॉज 24-year-old. तो आई यूज टू थिंक आई वॉज लेट. तो मैं वहां जाके पता लगा कि मैं तो बहुत जल्दी आ गया. किसी की उम्र क्या है, 29 है, somebody was 40, somebody was 41. So comparatively I was early, but also there were students who were 20, 22. So 24 is still not late. ठीक है? तो करिए आप मेहनत, मैं जितनी कर सकता हूं कर रहा हूं. आप लोगों को एग्जाम देना है, आपको ही पढ़ना है, और आपको ही विजडम ट्री के नीचे जाके बैठ के ओल्ड मॉन्क पीना है. ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच. Sir, हाँ जी, sir, बोलिए. what is the movie name? मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? सब चीज तुम मुझसे पूछोगे, फ्री में बता दो सब कुछ. Sir, is it The Man Who Feels No Pain? इंडियन की बात हो रही है बेटा. इंडिया में बैठे हो या फ्रांस में बैठे हो? इंडियन फिल्म का नाम बताओ. CK मुरलीधरन ने शूट किया था वो फिल्म. चलो इतना हिंट दे. Everybody say I am fine. वो बेटा वो जमाना खत्म हो गया, वो विकास शिवरामन का फिल्म है. Okay. तो एकदम से 16th सेंचुरी में चला जाता है, एकदम बिफोर क्राइस्ट. हम आफ्टर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं. फिल्म का नाम क्या है? पानीपत. फिल्म का नाम क्या है? पानीपत. बड़े बजट का फिल्म है. शोदीप दास के हिसाब से बिग बजट एपिक फिल्म होना चाहिए उसको. बिग बजट एपिक फिल्म. दैट वाज द फर्स्ट लार्ज फॉर्मेट डिजिटल एरी. हाँ जी, ठीक है. कुछ और पूछना है किसको? जल्दी से पूछ लो, अभी भी टाइम है. सर एक कंफ्यूजन था, कल आपने ना वो सेंसर साइज लेके बोला था कि वो लार्ज सेंसर का होता है ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड.